السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کیسا ہے، خیر یہ تو پڑھ کے ہی پتہ چلے گا، کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ فرسٹ ٹائم ہی پڑھنے لگی ہوں، لیکن میں نے سنا کہ اچھا ہے۔ تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع کیے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا ناول کا جو نام ہے وہ آپ لوگوں کو لاسٹ میں پتہ چل جائے گا۔ چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ دسمبر کی ٹھٹر دینے والی سردی اور قہر برساتی دھند رگوں میں دوڑتے خون کو جما رہی تھی۔ ٹوٹے ہوئے جوتے گھسیٹتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے متلاشی نگاہ ارد گرد دہرائی تھی۔ بھوک اور سردی کی شدت سے اسے اپنا آپ موت کے منہ میں جاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں ہر جگہ ویرانی ہی ویرانی نظر آ رہی تھی، کوئی وجود اس کے آس پاس نہیں تھا۔ اسلام آباد کی لمبی سڑکیں ویران پڑی تھیں۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے رب کا شکر بجا لایا کہ یہاں کوئی نہیں تھا، ورنہ اسے اپنی زندگی سے زیادہ عزت پیاری تھی، جس کو بچانے کے چکر میں وہ اتنے دنوں سے ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ ان بے منزل راہوں پر چل کر اسے محسوس ہوا کہ عزت کی رکھوالی کرنا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک عورت ذات کے لیے گھر سے نکلنے کے بعد وہ تو تھی ہی 15 سالہ لڑکی، جس کے ابھی چکھنے کے دن تھے، اور بے رحم زندگی نے اسے مشکلات کے کس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اللہ جی مدد کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس کی آنکھوں سے گرم گرم پانی چشمے کی طرح ابلنے لگا تھا۔ ساتھ چھوٹی ٹانگوں پر ہاتھ رکھے وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی تھی اور ان کے گرد باہوں کا حصار بنایا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ بہت بھوک لگی ہے اماں، ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے اماں، مجھے بچا لیں۔ وہ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ اپنی پھٹی ہوئی شال کو خود پر لپٹتے ہوئے اس نے خود پر کسی آسیب کی طرح چمٹتی سردی کو پرے دھکیلنا چاہا۔ دور سے کہیں گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ اتنی نڈھال ہو چکی تھی کہ اس نے سر بھی نہ اٹھا سکا۔ آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ساکت وہیں بیٹھی رہی۔ وہ جو کچھ بھی تھا اس کے ساتھ سے زن کی آواز نکالتا جا چکا تھا۔ اس کی سسکیوں کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ 1 منٹ گزرا، ایسے وہی آواز پھر سے آنے لگی۔ کچھ لمحوں بعد ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی آواز پر گل کو اپنا وجود کانپتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، خوف کی شدت سے۔ کون ہو تم؟ مردانہ سحر انگیز آواز پر اس نے دہل کر سر اٹھایا۔ ایک مرد کا اس کے قریب آ کر کھڑے ہونا اسے وحشت زدہ ہونے پر مجبور کر گیا تھا۔ ماہر جھکا اور بنا کسی جھجک کے گھٹنوں کے بل اس لڑکی کے سامنے بیٹھ گیا، جو اپنی ہرنی جیسی آنکھوں میں وحشت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ اس نے مسکرا کر بہت ہی غلط سوال گھر سے پوچھ ڈالا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ ہاں مذاق کر رہا ہوں، تم ڈر کیوں گئی ہو؟ اس کے چہرے پر پھیلتا بے تحاشا خوف دیکھ کر اسے تسلی دیتا ہوا بولا تھا۔ اچھا بتاؤ، کیا تم راستہ بھول گئی ہو؟ کیا تمہارا یہاں کوئی نہیں ہے؟ اکیلی ہو؟ اس کے لہجے کی نرماہٹ سے گل کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے سیلاب اترنے لگا تھا۔ اوہ نہ پلیز رونا مت، یہ لڑکیوں کے آنسو قسم سے سوائے ڈھونگ کے کچھ نہیں لگتے مجھے۔ اس کی آنکھوں میں اترتے دریائے سندھ کو دیکھ کر وہ جلدی سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکنے لگا۔ وہ سر جھکا کر آنسو پوچھنے لگی، تم گونگی ہو کیا؟ اس کی مسلسل خاموشی سے تنگ آ کر آخرکار وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ گل کو اس شخص کی موجودگی سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اسے تو حیرت اس بات کی ہو رہی تھی کہ وہ ابھی تک وہیں بیٹھی تھی، اس مرد کو دیکھ کر بھاگ کیوں نہیں گئی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور لڑکھڑاتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگی۔ ماہر نے نہایت حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ مطلب اتنی روڈ لڑکی، اس لیے میں لڑکیوں سے دور رہتا ہوں۔ اس لڑکی کو دور جاتا دیکھ کر وہ کڑکتے ہوئے سوچنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے زمین بوس ہو جانے پر تیزی سے اس کی طرف بھاگا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگا۔ کیا کہا؟ سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بڑبڑانے پر وہ کان اس کے قریب لا کر سننے لگا تھا۔ ہاتھ میں لگاؤ مجھے، ادھر سے آہستہ سے بڑبڑا رہی تھی۔ ماہر نے بے اختیار سر پر ہاتھ مارا تھا۔ اتنی بے اعتباری۔ وہ بڑبڑایا، دیکھیے محترمہ، میں ایک شریف لڑکا ہوں، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں اور کچھ نہیں۔ اس نے نہایت تحمل سے اس کی غلط فہمی ختم کرنا چاہی۔ گل خاموش رہی تھی۔ آپ اٹھ کر بیٹھے، دیکھیے خود ہی اٹھ جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اٹھانا پڑے۔ اس کی آخری بات سن کر گل بجلی کی تیزی سے اٹھ بیٹھی تھی، ساتھ ہی سردی کی لہر جسم میں دوڑتے ہی اس نے بے اختیار جھرجھری لی تھی۔ اوہ آپ نے تو کچھ گرم پہنا ہی نہیں ہوا، اور مجھے لگتا ہے آپ کو بھوک بھی لگی ہے۔ اپنی جیکٹ اتار کر اس نے احتیاط سے اس کے وجود پر ڈال دی تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ میری گاڑی میں کھانے پینے کی بہت سی چیزیں ہیں، اب میں تمہیں کچھ کھانے کو دیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا۔ گل نے ایک نظر اس کے بڑھائے ہوئے خط کی طرف دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ یا اللہ! ماہر نے بے اختیار گہری سانس لی تھی۔ گل نے ایک نظر معصومیت سے اسے دیکھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اس کا نرم اور ملائم چہرہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ اچھا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، آپ کھڑی ہو جائیں، وہ چٹکی بجاتا ہوا بولا۔ گل ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کھڑی ہو جائیں، وہ ضبط کے ساتھ اسے ہاتھ کے اشارے سے سمجھانے لگا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہر نے اپنی گردن کے گرد لپٹا مفلر اتارا اور اسے گل کے گرد حصار بنا کر دونوں پلوں سے پکڑ لیا۔ اب چلو، میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، مگر گرنے بھی نہیں دوں گا، پرتپش لہجے میں کہتا وہ آگے چلنے لگا، اور اس کے سہارے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ ذہن میں بے اختیار اس کا جملہ گونجنے لگا، ہاتھ بھی نہیں لگایا، مگر گرنے بھی نہیں دوں گا۔ یہ لو خشک میوے بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں،
मैं इन्हें हर वक्त अपने साथ रखता हूँ। मुस्कुरा कर फ्रंट सीट पर बैठी गुल के हाथों में डब्बा थमाते हुए इसने कहा। गुल ने एक लम्हा सोचने के बाद खामोशी से इसे थाम लिया। पता नहीं कौन कौन से मेवे थे जिनका आज तक इसने नाम भी नहीं सुना था। इस वक्त वो बेइंतहा भूखी थी, वरना किसी अजनबी के हाथों से कुछ लेना इसकी गैरत को गवारा नहीं था। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं तो पेस्ट्री खाने लगा हूँ, आप खाएंगी? पानी की बोतल इसके पास रखते हुए इसे डैशबोर्ड पर बड़ा पेस्ट्री का डब्बा उठा रहा था। चलगोजा हाथ में पकड़े वो खामोशी से उसे देखेगी। खाएंगी? इसने एक पीस इसकी तरफ बढ़ाया। वो देखने में ही इतना मज़ेदार लग रहा था कि गुल को खुद को रोक ना सकी। एक नज़र माहिर को खाता देखकर इसने इसी स्टाइल में खाना शुरू कर दिया। इसके नज़दीक वो जो चीज़ भी थी बड़ी मज़ेदार थी। टिश्यू से हाथ साफ करके माहिर ने अपने साथ बैठी लड़की पर निगाह दौड़ाई। बेख्तियार मुस्कान इसके लबों को छू गई थी। क्रीम से इसके होंठों के ऊपर मूछें सी बन गई थी। वो अब आखिरी बाइट खा रही थी। इसके एक एक अंदाज में मासूमियत झलकती थी। आप ये टिश्यू से साफ कर ले। माहिर ने टिश्यू इसकी तरफ बढ़ाया था। गुल ने ना समझी से इसके हाथ में इस सफ़ेद सी चीज़ को देखने लगी। फिर इसे खाने की चीज़ समझकर जल्दी से मुँह में डालना चाहा। नहीं, नहीं, इसे खाते नहीं हैं, इसे चेहरा साफ़ करते हैं। वह मुश्किल अपने कहके का गला घोंटकर वो एक टिश्यू उठाकर इसे समझाने लगा। गुल अब ज़रा से शर्मिंदा होकर अपना चेहरा साफ़ करने लगी थी। आप घर चलो, मेरे घर चलकर मैं आपको गरमा-गरम खाना खिलाऊँगा। मेरी मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती है। अब गुल के फ़रिश्तों को भी पता नहीं था कि ये मम्मी कौन होती है। चलोगी मेरे घर? बेशक गुल ने अभी तक और अपनी और इसकी मुलाकात के इस तमाम अरसे में एक बात का भी जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा था, मगर माहिर के नज़दीक सवाल करना बेहद ज़रूरी था। वह जवाब देने की बजाय गाड़ी से निकलने की कोशिश करने लगी। शायद इसके घर जाने की बात सुनकर खौफज़दा हो गई थी। अरे घबराइए मत, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मेरी बहन भी आपकी ही हम उम्र है, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। सुनिए तो। मगर वो बिना कुछ सुने मुसलसल अपनी जद्दोजहद में मसरूफ़ थी। लगता है दरवाज़ा तोड़कर ही निकलेंगी। गूंगी मिस नीना हो तो वो बस आकर गाड़ी के आगे बढ़ा चुका था। वो मिस नी अब गुटी-गुटी सी चला रही थी और उससे गुल को बुलानी शकीला और कितनी नींद करेगी। इसे कह मेरी टांगें दबा आके कसम से नाल बड़ा दर्द है। मुराद ने मुर्गियों को दाना डालती शकीला को देखकर चारपाई पर लंबा होते हुए कहा। शकीला के वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई थी। आगे होने वाले हालात का सोच के इसकी जान हवा होने लगी थी, मगर इसने तेज़ी से अपने चेहरे के तासुरात दुरुस्त कर लिए। वो किसी तरह ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि जो क़यामत अभी आएगी इसमें सारा का सारा इसका हाथ था। ओज़िल, अरे उठ जा, जा अब्बा को चाय बना दे और इसकी टांगें भी दबा दे। ये कहने के साथ ही इसने रज़ाई खींची। वहाँ पर सफ़ाए पुराने तकियों के कुछ नहीं रखा था। ओज़िल गुल वहाँ नहीं थी। ओज़ी की अब्बा हमारी थी तो कमरे में नहीं है। शकीला हाय वह करती कमरे से निकली। नहीं है मतलब? मुराद उछल के उठ खड़ा हुआ था। गंध ही बकती की रहती है, मनहूस औरत, कभी कुछ अच्छा भी बक लिया कर, जानवरों को चारा ना डाल रही हो कहीं। इसकी टांगें हौले-हौले से लरज़ रही थी। पूरा घर छान मारा मगर वो कहीं नहीं मिली। या अल्लाह, मेरी ओज़ी किधर चली गई? मुराद सर पकड़े बैठ गया था कि मैंने क्या कहा? ओज़ी किधर गई है? घर पर नहीं है क्या इसकी? हमसाये दीवार से लड़की पूछ रही थी। इन दोनों के चेहरे का रंग फ़र्क हुआ था। अरे नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात तो सुन। वो तो बाहिर शकीला बेगम की जल्दी से इसकी तरफ बढ़ी थी। अरे बस बस, सुनने को रह ही क्या गया है? ओ गाँव वालों सब सुन लो, मुराद की दी साहिबा अपने किसी आशना के साथ घर से भाग गई हैं। अरे मैं कहती थी ना तेरी दी के रंग ढंग ठीक ना थे। ये बात बात पे नखरा हर वक्त के लाड, ज़रूर कोई ना कोई रंग लाएगी, देख लेना आज। वो चीख-चीख कर कह रही थी। मुराद और शकीला ने इख्तियार चेहरा बेइख्तियार चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। थोड़ी देर बाद पूरे गाँव में ये खबर आग की तरह फैल गई थी। मैं पूछ रही हूँ कौन है ये लड़की? मम्मी ने लहजे में सख्ती लाते हुए माहिर के पीछे सर झुकाए छुपती-छुपाती लड़की को देखकर पूछा था। मम्मी, ये लड़की बेसहारा लावारिस है, अकेली खड़ी थी रात के वक्त सड़क पर, तो मैं इसे घर ले आया। वो डरते-डरते बोला था। ओह माय गॉड, खुदा के लिए माहिर, दुनिया के तमाम लावारिस का ठेका हमने नहीं ले रखा। पहले तो तुम कभी सड़क पर फिरते किसी बिल्ली या कुत्ते के ज़ख्मी बच्चे को पकड़ लाते थे, या रोज़ हटे-कटे फ़कीरों की मेहमान नवाज़ी तुम्हारी तरफ से होती थी, मगर आज तो हद ही होगी। एक जीती-जागती जवान लड़की को घर उठाकर लाए हो, क्यों हमें बदनाम करने पर तुले हुए हो? मम्मी अब उसकी रोज़-रोज़ बढ़ती मेहरबानियों से, जो कि हर किसी के लिए थी, तंग आ चुकी थी। मम्मी प्लीज़, वो मन मनाया था बिल्कुल नहीं है, जहाँ से आई है इसे वहीं छोड़ कर आओ। उन्होंने संगदिली से की इंतहा की थी। मम्मी खुदा के लिए हिना का सोच कर ये इसे एक रात के लिए घर में जगह दे दे। इतनी रात को ये कहाँ जाएगी? माहिर ने तलजा करते लहजे में कहा। गुल की आंखें आंसू से भर गई थी। पता नहीं ये कौन फरिश्ता सिर्फ इंसान था जो इसके लिए इतनी मिन्नतें कर रहा था, मगर इसको ये सब गवारा नहीं था। वो खामोशी से वापस जाने के लिए मुर्गी आहट पर माहिर तेजी से मुड़ा और बेख्तियार इसकी शाल का पल्लू थामा था। किधर जा रही हो? गुल ने बरक रफ्तारी से अपना पल्लू वापस खींचा। माहिर ने सर खुजाते हुए माँ की तरफ देखा। हमना बेगम ने जांचुई नजर से इस बेदाग हुस्न वाली लड़की को देखा था। ठीक है, तुम अंदर आ सकती हो। इनकी आवाज़ पर गुल के कदम बेख्तियार रुक गए थे।
خان صاحب بہت بڑا ڈاکہ پڑ گیا ہے ہمارے گاؤں میں۔ خان صاحب ہم لٹ گئے ہیں، برباد ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ گاؤں نے تکیے سے ٹیک لگائے۔ 60 سالہ خان اپنی ٹانگوں کی مالش کروا رہا تھا۔ سرخ آنکھیں اس وقت بند تھی۔ ابے کیا صبح صبح اناب شناب بک رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ خان اٹھ بیٹھا۔ اس کی ہولناک آنکھیں رشید کی بات سن کر پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ خان صاحب ہماری زبان ہمارا ساتھ چھوڑ رہی ہے، اتنی بری خبر سن کر ہم بولنے کی سکت نہیں رہی۔ وہ اپنا سر پیٹتے ہوئے بولا تھا، ابے ڈرامے نہ کر، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، مجھے زمینوں کا چکر بھی لگانا ہے اور آج اپنی اوزی سے بھی ملنے جانا ہے۔ اس کے بوڑھے مکرو چہرے پر پھیلی جذبات بڑے جوان تھے، کمینگی کی حد تک۔ خان صاحب اب وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ اپنے آشنا کے ساتھ گاؤں کی عزت اور آپ کی عزت پر تھوک کر نکل گئی ہے۔ اس نے تو آپ کی محبت کا خیال تک نہ کیا۔ وہ بنا آنسوں کے دھاڑے مار مار کر روتا ہوا بولا، اوئے خان غضبناک ہو کر دھاڑا اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ ہی اپنے سامنے جھکے رشید کو اس نے غصے سے پاگل ہو کر لات ماری۔ وہ چیخ مار کر گھسیٹتا ہوا دور جا گرا تھا۔ اوئے خان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا، میں نہیں چھوڑوں گا اسے۔ اس نے اپنے ساتھ پڑی اپنی کلہاڑی اٹھائی اور جاگ اڑاتا گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی گاڑی کا رخ مراد کے گھر کی طرف تھا۔ ٹیبل پر پانی کا جگ رکھ کر ہمنا بیگم نے ایک ترچھی نگاہ سر جھکائے بیٹھی اس لڑکی پر ڈالی۔ انہیں تو اس کی خوبصورتی سے ڈر لگ رہا تھا، اور آج کل زمانہ ہی کہاں تھا کسی ارے گہرے کو اپنے گھر میں جگہ دینے کا۔ ہاں ممی، میں نے کھانا نہیں کھاؤں گا، میرا نوڈلز کھانے کا موڈ ہو رہا ہے۔ ہمنا بیگم کو مسلسل گھورتی کو دیکھ کر ماہر نے کنکھارتے ہوئے کہا، یہ کون سا وقت ہے نوڈلز کھانے کا؟ تم اپنے فرینڈز کے ساتھ کھانا کھا کر نہیں آئے کیا؟ اب جاؤ اور سو جاؤ۔ وہ آج پہلی والی ممی بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی، لاڈ اٹھانے والی، مگر 27 سالہ ماہر کے لیے نخرے اٹھائے بغیر جینا مشکل تھا۔ ممی پلیز، اس کے مسلسل کہنے پر اسے گھور کر چولہے کے پاس جا کر کھڑی ہوگی۔ اب کھانا شروع کریں۔ میزنی ہاتھ پاٹ کھول کر اس نے چپاتی پلیٹ میں رکھ کر گل کے سامنے رکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ لفظ میزنی پر گل کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ اسے عام سا لفظ سمجھ کر اگنور کر چکی تھی۔ چپاتی توڑ کر اس نے لقمہ سالن میں ڈبویا۔ پہلے لقمے میں ہی اسے کھانا بے حد لذیذ لگا تھا۔ اسے جلدی کھاتا دیکھ کر ماہر مسکرایا تھا۔ اسے دلی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مما نے باپ اڑاتے نوڈلز اس کے سامنے رکھے تھے۔ لقمہ نگلتی گل نے حیرت زدہ نظروں سے ماہر کے سامنے رکھی چیز کو دیکھا تھا۔ ہمنا بیگم سنک میں پڑے میلے برتن دھو رہی تھی۔ اسے مت کھائیں صاحب، وہ اچانک بول پڑی۔ ماہر کے چہرے پر شدید حیرت چھائی تھی۔ اس کو نظر انداز کر کے وہ تیزی سے ماں کی طرف مڑا تھا۔ ممی، میرے خیال میں کل پارٹی ہونی چاہیے۔ گونگی میزنی آخر کار بول پڑی ہے۔ اس کی بات سن کر ہمنا بیگم کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو اس کے لیے میزنی کا لفظ استعمال کرنے پر ٹوکا۔ گل ابھی تک نوڈلز کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں نہ کھاؤں میں اسے؟ وہ اب مسکرا کر دلچسپی سے گل کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ گل نے نہایت صدمے سے اسے دیکھا تھا۔ صاحب تم کافر ہے؟ ناگ سانپ کھائے گا کیا؟ یہ ناگ کے بچے پکے ہوتے ہیں۔ اس کی صدمے میں ڈوبی آواز پر بے ساختہ ماہر کا کہنا کچن میں گونجا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمنا بیگم کو ہنسی آنے لگی۔ وہ تیزی سے کچن سے نکل کر بیٹی کے کمرے میں گھس گئی تھی۔ کیا تم دوسرے سیارے سے آئی ہو؟ وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ گل ناسمجھی سے دیکھنے لگی تھی۔ ایک تو اس نے اس شخص کو سانپ کھانے سے بچا لیا تھا، اوپر سے وہ اس پر ہنس رہا تھا۔ وہ شخص پاگل تھا یا وہ پاگل تھی؟ کیا ہو رہا ہے بھیا، ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ یہ کون ہے؟ اس وقت ہینا بالوں کو لپیٹتی سوالوں کی بوچھاڑ کرتی کچن میں داخل ہوئی۔ غالباً ہمنا بیگم نے اسے سارا کچھ جا کر بتا دیا تھا، مگر وہ پھر بھی انجان بنتے ہوئے پوچھی تھی۔ ماہر ابھی تک پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ او مائی گاڈ بھائی، کتنی پیاری ہے یہ، اور اس کی اسکن کتنی سافٹ ہے بھائی، ابھی پوچھو اس سے یہ کون سی کریم یوز کرتی ہے۔ وہ آتے ہی بھائی کے کندھے سے لٹک گئی تھی۔ آ گئی فیک بیوٹی۔ ماہر نے اپنے کندھے سے چپکی بہن کو دیکھ کر چہرہ تھا شٹ اپ، وہ خفا ہو گئی تھی۔ اچھا ناراض مت ہو، میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ وہ پھر بھی باز نہیں آیا تھا۔ ہنا نے ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ میں چڑھا تھا۔ گل ہونک بنی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بائی دا وے، یہ کیوٹ سی لڑکی کون ہے؟ وہ کرسی گھسیٹ کر گل کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس کا ہاتھ تھام کر وہ سہلاتی ہوئی نرمی سے پوچھنے لگی۔ گل کو نہ جانے کیوں وہ اپنی سے لگی تھی۔ ماہر نے بے ساختہ سر پر ہاتھ مارا تھا۔ اس سارے عرصے میں اس نے اس لڑکی سے اس کا نام تو پوچھا ہی نہیں تھا۔ جی اوزی گل، انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ نروس سی بولی تھی۔ بہت ہی پیارا نام ہے۔ اچھا آپ کو نیند آ رہی ہوگی، میرے ساتھ سوئیں گی یا گیسٹ روم میں؟ گل نے ایک بار پھر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا، اور پھر مدد طلب نظر سے ماہر کو دیکھا۔ بیوقوف لڑکی، تمہیں کیا لگتا ہے اسے پتا ہوگا گیسٹ روم کیا ہوتا ہے؟ ماہر نے آہستہ آواز میں کہہ کر بہن کو گھورا تھا۔ سوری، آپ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اسی لیے کچن سے نکل گئی۔ اس کی پیروی کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں سے چلے گی۔ پیچھے وہ گہرا سانس لے کر ٹھنڈے ہوتے نوڈلز کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ مراد حرام خور، باہر نکل، آج میں تیری بوٹیاں بوٹیاں کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ خان سے غداری کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے تیری صورت میں لوگ صدیوں تک یاد رکھیں گے۔ باہر سے آتی خان کی دھاڑ پر وہ دونوں میاں بیوی دہل کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تو اندر جا جلدی کر، اس نے شکیلا کو اندر دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ اسی وقت باہر والا بوسیدہ دروازہ ٹوٹ کر نیچے گرا اور خان کے 2 درجنوں آدمی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ کچھ
अपने हाथों में लाठियाँ और कुछ ने खंजर पकड़े हुए थे। रशीद फुर्ती के साथ गाड़ी से नीचे उतरा और खान की राह में चादर बिछाई थी। खा जाने वाली नज़रों से अपने सामने झुके मुराद को देखकर खान गाड़ी से नीचे उतरा और इसे एक ज़ोरदार लात मारी थी। वो कराहता हुआ दूर जा गिरा था। साईं रब्ता वास्ता मुझे माफ़ कर दो, वो लड़की रातों रात कहाँ गायब होगी हमें कुछ नहीं पता। साईं साईं मेरा यकीन करो, आपका नमक खाया है, इस हरामखोर को भी खिलाया है, मगर इसने हराम कर दिया। साईं मैं कुछ नहीं जानता। साईं मेरा यकीन करो। इसके सामने झुका हुआ इल्तिजा कर रहा था। इसे पुरसोच से देखते हुए खान ने सिगरेट का गहरा कश लगाकर धुआं फिजा में उड़ाया था। वो अभी तक हाथ जोड़े ही रो रहा था। अंतर शकीला सजदे में गिरी अल्लाह से अपने शोहर की खैरियत तलब कर रही थी। दिल था कि डर के मारे बैठा जा रहा था। मैं जानता हूँ तो ऐसा नहीं कर सकता। तो मेरा बंदा है, मुझसे गद्दारी कैसे कर सकता है। खान झुककर इसके पास बैठा था और अपने लहजे में शक्कर गोले से कहने लगा। फिर रशीद को देखकर हंस पड़ा। वो दोनों साथ में कहका लगा हंसने लगे थे। इसके अंदर खतरे की घंटियां बजने लगी थी। खान का हाथ आगे बढ़ा। अगले लम्हे ही वो उसके नाजुक जगह को सिगरेट से दाग रहा था। मुराद की दर्दनाक चीख पूरे गांव में गूंजी थी। परिंदे दरख्तों पर से उड़े थे। मासूम बच्चों ने खौफ ज़दा होकर माँ के सीनों में पनाह ली थी। खान का महसूस कहका गूंजा था। शकीला दर पर कमरे से बाहर आई थी। खान साहब खुदारा हमारे सरताज को छोड़ दो, खुदा की कसम इसका कोई कसूर नहीं है। तुम्हें सोने रब का वास्ता हम पर रहम करो। वो भागती हुई आई और खान के पैरों में गिराने लगी। मुराद ने दखल कर बीवी को देखा था। वो शायद खुद नहीं जानती थी कि खान के सामने आकर इसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। खान ने कमीनगी से मुस्कुराकर अपने पैरों में झुकी शकीला के सर पर हाथ फेरा। मुराद को लग रहा था जैसे गुजरते हर लम्हे के साथ इसकी सांसें मद्धम पड़ रही हों। वो लाख घटिया इंसान सी मगर अपनी औरत की इज्जत इसे प्यारी थी। एक झटके से खान ने अपनी गिरफ्त में नरमी से सख्ती लाकर शकीला के परांदे को खींचकर इसका सर ऊपर किया। दर्द की शिद्दत से इसे बेख्तियार शकीला के मुंह से गिटी गिटी चीख निकली थी। बेटी लगता है माँ पर गई है, बस ज़रा सा फ़र्क है हमारी ओज़ी और ओज़ी की माँ में। इसका हुस्न ज़रा जवान था मगर खैर हम इसी से काम चला लेंगे। इसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए वो सबके सामने बेबाकी से कहे जा रहा था। साईं रब्ता वास्ता मेरी औरत को कुछ मत कहो, जो सज़ा देनी है मेरे को दे दो, पर हमारी औरत को छोड़ दो। वो रोते हुए बोला था। बेबसी के साथ इसकी आंखों से चश्मा फूट रहा था। आखिर वो किस तरफ बचाता अपनी बीवी को। मुराद को आंखें दिखाकर खामोश करवाता हंसता हुआ शकीला की मज़ाहमत से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा, जो उसके हाथ में नाखून गाड़ कर अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। होलनाक अंदाज में हंसते हुए इसने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट सहन के बीचों बीच में डाली। गोया एक इशारा था। इसके सब आदमी मुराद पर बल पड़े थे और इसे बुरी तरह पीटने लगे। इनके घर के दरवाजे पर पूरा गांव जमा था और ये तमाशा देख रहा था, मगर किसी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। मुराद को आत्महुआ करके वही फेंक कर और चीखती चलाती शकीला को गाड़ी में डालकर सब वहाँ से चले गए। तब शकीला का बुरा वक्त शुरू होने वाला था। आओ अंदर आओ, तुमने आज यहीं सोना है, ये मेरा कमरा है। हिना दरवाज़ा खोल कर इसे बताती हुई अंदर दाखिल हुई थी। इस पर कमरे में दाखिल होते ही गुल वहीं की वहीं खड़ी रह गई। डबल बेड जिस पर सादे से सफ़ेद चादर बिछी हुई थी, गुल के नज़दीक सादगी में ही गजब ढा रहा था। सफ़ेद पर्दे, कालीन, फर्नीचर भी सफ़ेद ही थे। ये सब देखते हुए इसे जन्नत होने का गुमान हुआ था। कमरा बहुत ही सादा मगर बेहद खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। हिना बाथरूम में गई होना हो, ये जन्नत ही है। थोड़ी देर के नीचे हाथ रखते हुए वो पुरसोच अंदाज में इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी। अम्मा कहती थी ना, जो दुनिया में अच्छा काम करता है इसको जन्नत मिलती है, जो बहुत ही सोनी होगी। मुझे लगता है जब मुझे भूख लगी थी तब मैं शायद मर गई थी और अब शायद जन्नत में आ गई हूँ। लगता है वो माहिर साहब मेरे को लेने आए थे। शायद वो फरिश्ता होंगे। अम्मा कहती थी ना, इज़राइल फरिश्ता हमारी जान निकालता है। शायद वही है, मगर इतना सोना इज़राइल। वो नॉन स्टॉप सोचे जा रही थी जब हिना बाथरूम से बाहर निकली। फिर ये जन्नत में क्या कर रही है? शायद ये हूर हो। हिना को तकती वो अपनी सोचों में गुम थी जब इसके पास आकर वो चुटकी बचा के से होश में लाई थी। बेगम साहिबा हमारी बाजू पर चुटकी काटना। जिसने हिना के सामने अपना बाजू करते हुए कहा, बेगम साहब। सदमे के मारे हिना को चक्कर आने लगा था। माजरत, हमारा मतलब था छोटे बेगम साहब। इसने जल्दी से वजाहत दी थी। नो प्लीज़ कॉल मी हिना। ये बेगम साहब से तो आंटी वाली फीलिंग आती है। वो जर्जरी लेकर बोली, जी छोटे बेगम साहब। गुल के पल्ले कुछ ना पड़ा था। हिना ने बेख्तियार अपना हाथ अपने सर पर मारा था। कुछ नहीं, मेरा मतलब है तुम मुझे हिना कह के बुलाया करो। बेगम साहब नहीं, ठीक है। गुल थोड़ी देर तस्वीर का शिकार रही, फिर मजबूर होकर सर हिला दिया।
अच्छा तुम वो चुटकी काटने का क्यों बोल रही थी ना, याद आने पर से पूछने लगी। वो हमें ऐसा लगता है जैसे हम जन्नत में हैं, और वो ऐसा ही लगता है जैसे आप यहाँ की हूर और माहिर साहब इज़राइल हैं। वो भूलेपन के साथ बोली जा रही थी। इन्होंने मुँह पर हाथ रख के उबलते कह के कंट्रोल किया। उसके सामने हँसकर वो इसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। वो जल्दी से कह के कमरे से भागी। से अब माहिर को इज़राइल कहकर भी तो चढ़ाना था। अच्छा ऐसा नहीं है सोनेला, मुझे माफ़ कर देना। पर ये क्या दुनिया वाले इतने अच्छे होते हैं? वो बड़ी गहरी बात सोच के इस नरम से बेड पर लेट गई थी। अम्मा हवा की यादें शब्द से इसकी आंखों के सामने आ गई थी। बेख्तियार आंखें नमकीन पानी से भरती चली गई। ये लड़की को नाश्ते की टेबल पर दोनों फैमिलीज खुश गप्पे करते हुए मसरूफ थी। जब भी हिना के साथ सुकर सिमट कर आती गुल को देखकर शबनम ने खासे अजनबी से पूछा। चचा जान की पूरी फैमिली चौंक गई थी। माहिर ने गर्दन मोड़कर गुल की तरफ देखा। सफ़ेद मैक्सी जो कि गालबा हिना की थी, जेबतन की वो किसी भी मर्द का ईमान ख़राब कर सकती थी, मगर इसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सो इसको रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। वो तेज़ी से चेयर पर से उठा था और कुर्सी खिसकाकर इसके साथ बैठने के लिए जगह बनाई थी। शबनम के माथे पर खासे बल पड़े थे। वो इसके की बेटी थी और अपनी फैमिली के साथ ऊपर वाले पोर्शन में रिहाइश पजीर थी। अमना बेगम के चेहरे पर नागवारी की लहर दौड़ गई, जबकि आफ्ताब खासी गहरी नज़र से गुल का जायज़ा लेने लगा। अहमद साहब उस वाली नज़र से गुल को देखने लगे। शमा बेगम और अली साहब की नज़रें भी सवाल कर रही थी, कौन है ये हमना? हमना साहब ने बीवी से सवाल किया। माहिर ने अपना झुका हुआ सर अब इत्मीनान से ऊंचा किया। गुल मुस्तरिब सी वहाँ खड़ी जाने को पर तौल रही थी। हिना लापरवाही से जो सपने और गुल के लिए ग्लास में लेने लगी। आपके बेटे की एक करम नवाजी की और जिंदा मिसाल, उन्होंने सर झटक कर कहा। अहमद साहब ने सख्त नज़रों से माहिर को देखा था, जो अब हिना से इसका गिलास झपट कर एक ही गुण में जूस से सारा पी गया था। भाभी आपने इसे घर में कैसे आने दिया? मुझे तो शक्ल से ही चोट लग रही है। शमा बेगम ने बिना किसी लिहाज के जहर उगला था। अपने लिए ये अल्फाज सुनकर गुल ने तड़प कर वहाँ से जाना चाहा। हिना ने टेबल के नीचे से इसकी टांग पर हाथ रख के इसे रोक लिया था। वह बेबसी से इसे देखती रह गई थी। चची जान लैंग्वेज प्लीज़। माहिर के चेहरे पर शदीद नागवारी छा गई थी। तो तुम अब चची को सिखाओगे? अली चचा ने सख्ती से टोका था। अपनी बीवी की बेइज्जती इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। जी बिल्कुल, बाज़-औक़ात बड़े भी कुछ ऐसा गलत कह जाते हैं जिनसे छोटों को इन्हें टोकना पड़ जाता है। जैसे आज चची गलत कह रही हैं, और वैसे भी गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं। वो इत्मीनान से गोया हुआ गुल बुत बनी ये तमाशा देख रही थी। माहिर अहमद साहब ने तनबीही अंदाज में इसे पुकारा था, मगर इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपने नाम का एक था। हाँ तो मोम ने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा। मुझे भी इस लड़की को देखकर ऐसा ही लगा पहली नज़र में। शबनम भी बीच में कूद पड़ी थी ना, और माहिर के चेहरे पर इस्तेज़ाई मुस्कुराहट फैल गई। तो कम ऑन शबनम, तुम तो ये बात मत ही करो। हिना के जो गोल्ड के रिंग गुम हुए थे सब सुन ले। वो कल मुझे शबनम के ड्रेसिंग पर पड़े मिले हैं। जेब में हाथ मार के इसने रिंग सबके सामने लहराए। शबनम के चेहरे का रंग फक पड़ गया था। अली साहब और शमा खा जाने वाली नज़र सब बेटी को घूर रहे थे। चोरी चकारी करना इसकी बचपन की आदत थी, जो कि सब जानते थे, सो वो मुकर भी नहीं सकती थी। अहमद साहब एक झटके से उठ खड़े हुए और वहाँ से निकलते चले गए। हमना बेगम भी मियाँ के पीछे चली गई। हिना अपना और गुल का नाश्ता ट्रे में सेट करके गुल के लिए वहाँ से चली गई थी। माहिर ने हाथ टिश्यू से साफ किया और मुस्कुराती निगाह चचा चटी और शबनम पर डालकर घर से निकल गई। पीछे इन मियाँ बीवी की बेटी को लानत मलामत शुरू हो गई थी। अगर कोई कहे कहीं गुम हो गया था तो वो आफ्ताब था। हिना जी हमें अब जाने दो यहाँ से, हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। और हंसी सी हिना की मिन्नतें कही जा रही थी, जो बेनियाजी फ़ोन पर लगी हुई थी। हेलो, हाँ भैया सुनो, गालबन माहिर ने कॉल रिसीव कर ली थी। हाँ बोलो हिना, जल्दी करो, मैं बहुत बिजी हूँ। दूसरी तरफ से वो झुंझलाया वो कह रहा था, भैया गुल जाने के लिए तंग कर रही है क्या? मैं इसे जाने दूँ? वो अपना हाथ चढ़वाते हुए गुल को देखते हुए पूछने लगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं आज शाम में घर जल्दी आने की कोशिश करूँगा। इसे जाने मत देना और इसे संभाल लेना, ओके? इसने जल्दी से कहकर कॉल काट दी थी। भैया ने मना कर दिया और अब तुम नहीं जा सकती। हिना ने बाल पीछे करते हुए इसे बताया। मगर हिना जी वो बेबसी से बोली, अरे तुम क्यों जाने को कह रही हो? बाहर कौन सा तुम्हारे सगे बैठे हैं? बहुत गंदी दुनिया है। वो तो शुक्र करो कि भैया तुम्हें घर ले आए। और आसानियत से इसे समझाने लगी। गुल खामोश रही थी। अच्छा मैं 17 साल की हूँ और एफएससी कर रही हूँ, और माहिर भैया 27 साल के हैं और एक कामयाब वकील हैं। दुनिया में किसी से नहीं डरते सिवाय मम्मी के। बाबा जानी का बहुत बड़ा जनरल स्टोर है और चाचू के साथ चलाते हैं। मम्मा और चाची घरेलू खवातीन हैं। हमारे एक और चाचू भी हैं जो दुबई में दादो और अपनी फैमिली के साथ होते हैं। और शबनम चुड़ैल मेरी क्लास फेलो है और आफ्ताब हमसे जूनियर है। वो सांस लेने को रुकी थी। गुल दीदे फाड़े बस इसकी चलती जुबान को देख रही थी। जो कुछ इसने कहा था उसको समझ नहीं आया था। तो बताओ कुछ अपने बारे में। इसके सवाल पर गुल का रंग फक हो गया था। इसी सवाल से तो वो बचना चाह रही थी। बताओ भी सकता कि हो गया है? हिना ने इसे इतनी ज़ोर से हिलाया कि गुल को लगा इसका जोड़ हिल गया हो। वो हिना जी इसने इसे कहना चाहा कि शायद झूठ का सहारा लेके इसी वक्त हिना बेगम अफरा दफरी में दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुई थी। ना बेटा तुम्हारी दादू की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, ज़्यादा
चांसेस नहीं है, तुम्हारे बाबा ने फ़्लाइट बुक करवा दी है, भैया और भाभी भी। शमा और अली साहब जा रहे हैं, तुम आओ मेरे साथ, पैकिंग में हेल्प करो। हाँ, घर का अच्छे से ख्याल रखना, अब जल्दी करो। वो हांफती हुई वहाँ से निकल गई थी। गुल पर इनकी नज़र ही नहीं पड़ी थी। इनके पीछे परेशान सीना भी निकल गई। गुल बिस्तर पर ढह सी की थी, पता नहीं इसका क्या होना था और माहिर ने इसे क्यों रुकने का कहा था। ये ख्याल इसके जिस्म में सर्द लहर दुरा गया था। अरे पापी, पर इस लड़की का क्या होगा जिसको आप घर छोड़ आई हैं? शमा ताई की तब से ही जान पे बनी हुई थी, जब से माहिर गुल को घर लाया था और इसके लिए माहिर की ढेरों हमदर्दियाँ इनकी जान निकालने का काम कर रही थी। चाची जान प्लीज़ थोड़ी देर के लिए इस लड़की का चैप्टर क्लोज कर सकती हैं आप? क्या आप देख नहीं रही मम्मी की हालत? माहिर ने सख्ती से इन्हें टोका था। वो ज़रा भी किसी का लिहाज नहीं करता था। वो बड़बड़ा कर रहेगी। हमना बेगम चेहरा दूसरी तरफ किए रोए जा रही थी। इनकी सास इनकी खाला भी थी। बचपन में इनकी माँ के इंतकाल के बाद उन्होंने हमना बेगम को माँ बन के पाला था और अपने घर की बहू बनाया। शमा बेगम गैर थी, इन्हें सास से कोई ख़ास लगाव नहीं था। मम्मी पापा, चाची जान और चचा को एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद वो थका थका सा घर लौटा। सामने वैसे सीढ़ियों पर बैठी हुई दिखाई दी थी। हेलो मिसनी, क्या कर रही हो? वो मुस्कुरा के इससे ज़रा फासले पर जा बैठा था। गुल ने एक खामोश निगाह पर डाली और बगैर कोई लिफ्ट करवाए बगैर दोबारा सामने तकने लगी। माहिर ने एक निगाह पर डाली थी, हथेलियों पर चेहरा गिराया। वैसे मासूम, बहुत मासूम लगी थी। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुम जंगल से आई हो? वो दोस्ताना लहजे में से पूछने लगा। गुल ने सर हिला दिया। ओह, तब भी मैं सोचूं जंगली वाली हरकतें क्यों है? इसने सर खुचाते हुए आस्तिकी से कहा। गालिबन से खुद को इसराइल सुनना पसंद नहीं आया था। ओह, वो भी अपनी छोटी बहन के मुंह से। गुल नासमझी से उसे देखने लगे। अच्छा, क्या तुम मुझसे कुछ सीखना चाहती हो? कोई मदद चाहिए? इसकी तरफ रुख करते हुए मुस्कुराकर बोला था। हाँ छोटे साहब। इसने जल्दी से सर हिला दिया। और प्लीज़ कॉल मी माहिर। इसने सर पीटा था। क्या कहा छोटे साहब? वो सवाली नज़र से देखने लगी। कुछ नहीं, मैंने कहा आओ मेरे सर पर ईंट दे मारो। वो झंझला कर रह गया। हाँ हम ऐसा नहीं कर सकते छोटे साहब। गुल ने फ़ौरन कानों को हाथ लगाया। उफ मेरे खुदा, इसने गहरी सांस ली। वो तो किसी से बात ही कम करता था, ऊपर से ये लड़की इसके दिमाग का ही दही बनाने पर तुली हुई थी। ओके माहिर, कूल डाउन। हाथ उठाए। वो गहरी सांस लेकर खुद को पुरसकून करने लगा। गुल बड़ी फुर्सत से इसकी हरकत का जायजा लेने लगी थी। ओके तुम पूछो, क्या पूछना चाहती हो? वो अब ठंडा होता इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। साहब वो हमने ये पूछना था कि गुल ने ज़रा नर्वस होकर उंगलियां मरोड़ी थी। माहिर ने इसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। वो साहब जी, ये गोश्त रूम क्या होता है? एक लम्हे में आखिर इसने कह ही डाला। गोश्त रूम? माहिर बड़बड़ाया था। जी साहब, बड़ी मासूमियत से कहा गया। ये तुमने कहाँ से सुना? काफ़ी देर सोचने के बाद आखिरकार माहिर को पूछना पड़ा। वो साहब जी, इस दिन हिना कह रही थी ना कि मुझे मेरे कमरे में सोगी या वॉशरूम में। इसे बताते हुए वो ज़रा झिझकी, जैसे इसे भी यकीन हो कि वो कुछ गलत ही वो रही है। माहिर ने बेख्तियार सीढ़ी का कोना पकड़ा। इसका दिल चाहा वो अपना सर दीवार में दे मारे और फाड़ दिया, कहीं गोशा नशीन हो जाए, पर यहाँ से गायब हो जाए। इसे अपनी तरफ इसे इस तरह नहीं बोलते। चलो अब गौर से सुनो, पहले इसका मतलब समझो और फिर पीछे पीछे बोलना। गेस्ट रूम। वो राम राम से इसे सिखाने लगा है। 15 मिनट की मेहनत के बाद वो लफ्ज़ इसकी ज़ुबान पर चढ़ गया था और फिर कुछ देर बाद इसका मतलब समझाने में लगी। चलो अब उठो और मेरे लिए ठंडा पानी लाओ। वो हाँ पर चुका था। जी छोटे साहब अपनी खुशी संभालती हुई उठी और अंदर भाग गई, जबकि माहिर छोटे साहब के कहने पर एक बार फिर से अपना माथा पीट चुका था। तुम कहाँ गुम हो? काफ़ी देर से कमरे में टहलती शबनम चिढ़कर भाई की तरफ पलटी और इसके कंधे पर जोर से हाथ मारा, जो चेहरा हाथों में गिराया। पता नहीं कहाँ गुम था। हाँ हाँ क्या हुआ है? बस के अचानक हमले से बौखला गया था। क़यामत आ गई है, उठो जहन्नुम में जाने की तैयारी पकड़ो। वो चीखी थी। तुम्हारे गुनाहों की सज़ा मिल गई तुम्हें? वे तुम्हें नान से देखते हुए पूछने लगा। क्या मतलब? इसने आफ्ताब को घूरा था। तुम्हारे जले हुए मुंह को देखकर ऐसा लगा। वो हंसा। छठा वो गर्जी थी। वैसे इतना गुस्सा क्यों? वो साथ टेबल पर बड़ी फ्रूट्स की बास्केट से केला उठाए पूछा था। वो लड़की मुझे इस घर के लिए कोई नई मुसीबत लग रही है। माहिर को देखा था कैसे इसकी खातिर दारियाँ कर रहा है। शबनम का जलन के मारे बुरा हाल हो रहा था। तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? वो छिलका उछालते हुए बोला था। सीधा शबनम की कमर पर जा लगा। मनहूस इंसान कभी बहन का भी सोच लिया करो। गुस्से से लाल पीली होती छिलका इसकी गोद में पटक कर बोली। ओ आज बड़ा बहन भाई हो रहा है, पहले कभी याद भी होता है कि तुम्हारा एक अदद भाई भी है? इसने दूसरा छिलका उछाला था। बकवास मत करो, अगर मदद नहीं कर सकते तो ओके ना। इसे उंगली दिखाते हुए जब से बोली थी। अरे जाओ जाओ, वो लापरवाही से बोला। जा रही हूँ। वो पैर पर रखते हुए बाहर जाने के लिए पलटी के केले के छिलके से फिसल के आराम से ज़मीन बोस हो गई। आफ्ताब का बेसाख्ता छत बाहर कहका गूंजा था। तेरी तो वो की शेरनी बनी लंगड़ाती हुई इसके पीछे भागी, मगर वो पहले कमरे से भाग गया था। पीछे वो बेबस होकर से लानतों के अंबार भेजने लगी। अस्सलाम वालेकुम। माहिर ने दरवाज़ा नॉक करने के साथ अंदर दाखिल होते सलाम किया। वालेकुम सलाम भैया। हिना मुस्कुराकर भाई से मिली थी। उसके सर पर प्यार देकर खामोश नज़र सर झुकाए
ठीक गुल को देखकर बेड पर शापर के ढेर लगाने लगा। उफ़! क्या खुशबू आ रही है, खैर तो है ना? भैया ये सब किस खुशी में हिना ने आँखें बंद करके खाने की इश्तहा अंगेज़ खुशबू को अंदर उतारते कहा, साथ ही शरीर नज़र से गुल को देखते हुए भाई को छेड़ा। माहिर ने इसे घूरा था, वो तिसे निकालते हुए इशारों से इसे छेड़ने लगी। ना चाहते हुए भी गुल भी शापर की तरफ मतवज्जा होगी। माहिर जो इसी को देख रहा था बेख्तियार मुस्कुरा दिया। चलो ये सब टेबल पर सेट करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। बहन से मुखातिब होकर वहाँ से चला गया। हिना गुल को इसके नाना और हिना जी बस आप खाने वाली सदाओं के बावजूद बाहर ले आई थी। इतनी सारी चीज़ें देखकर मुँह में पानी आ गया। थैंक यू सो मच भैया, आई लव यू। हिना ने मुँह में आए पानी को कंट्रोल करते हुए खुशी से कहा था। गुल ने एक निगाह टेबल पर दुहराई, वहाँ पर भुने मुर्गे सिवाय से किसी चीज़ से वाक़फ़ियत नहीं थी। पिज़्ज़ा, पास्ता, मैकरोनी, दही बड़े, रोल, समोसे, चिकन, कोल्ड ड्रिंक, वो बड़ी फुर्सत से इनका जायज़ा ले रही थी। मिस ने क्या खाओगी तुम? माहिर ने से चीज़ों को खाने के बजाय सिर्फ़ इसे देखने पर टोका था। इसके सवाल पर गुल ने बेख्तियार एक और निगाह टेबल पर दुहराई थी। माहिर सवालिया नज़रों से इसे देख रहा था। गुल ने एक निगाह इस पर डाली और फिर कदरे आहिस्तगी से इसकी तरफ इशारा करते आहिस्ते से आवाज़ में बोली, साहब ये छोटी गोल रोटी। निहायत मासूमियत थी इसके लहजे में। कोल्ड ड्रिंक का घूंट भरते ही ना को साख्ता उछू लगा था। माहिर ने लब खींचकर किसी तूफान की तरफ आते कहके को रोका था। गुल अब ना समझी से दोनों को देख रही थी, जिनके चेहरे के तासुरात अजीब हो रहे थे। क्या क्या खाया जा रहा है भई? हमसे तो पूछा भी नहीं क्या? शबनम की आवाज़ पर हिना और माहिर दोनों के चेहरे पर घबराहट फैल गई थी। वो एक अदा से चलती हुई माहिर के कंधे पर बेतकल्फ़ी से हाथ रखकर चीज़ों का जायज़ा लेने लगी। गुल ने नहायत हैरत से इसका और माहिर के कंधे पर धरा हाथ देखा था। ये क्या बदतमीज़ी है? इसका झटकते हुए माहिर नागवारी से बोला था। डठाई से मुस्कुराते हुए वहीं चेयर घसीट कर बैठ गई थी। हिना ने नागवार नज़र से इस कबाब में हड्डी को देखा था। मेरे लिए क्या लाए हैं? माहिर वो लहजे में लाड़ समोए बोली थी। हिना बेसाख्ता खांसने लगी, जबकि गुल छोटी गोल रोटी को उलट कर देख रही थी कि इसे खाया किस तरह जाए। तुम्हारे लिए? माहिर हाथ थोड़ी के नीचे रखते हुए सोचने लगा। शबनम पुरजोश होगी। हाँ, ज़हर लाया हूँ, किचन में रखा है, जल्दी से खा कर मर जाओ। मजाक उड़ाने वाले अंदाज से कहकर वो गुल के हाथों से पिज़्ज़ा लेकर प्लेट में रख कर घूरते हुए से खाने का इशारा करने लगा। हिना सर झुकाकर की करने लगी। शबनम ये मंजर देखकर आग बबूला हो गई थी। झटके से वो कुर्सी से उठकर खड़ी होगी और पैर पर रखते हुए वहाँ से चलेगी। भैया हर वक्त क्यों इंसल्ट करते हो इस बेचारी की? हिना को अब तक हंसी आ रही थी। माहिर बिना जवाब दिए उठ खड़ा हुआ। ये लड़की हमेशा इसका मूड खराब कर जाती थी। और मामा बाबा थे कि मुस्तकिल में इसे माहिर के पल्ले बांधने का सोच रहे थे। भैया कुछ खाओ तो सही, कहाँ जा रहे हो? हिना भाई को जाता हुआ देखकर बोली। माँ को खामोशी से चला गया। इस शब मासी को नहीं छोड़ूंगी मैं, इसकी वजह से भैया गए हैं। हमारी खुशी इसे बर्दाश्त नहीं होती। हिना को शदीद गुस्सा आया था। गुल खामोशी से हिना को देख रही थी, जो गुस्से से लाल पीली होती मजीद क्यूट लग रही थी। वैसे हिना जी भी बहुत सोनी है। इसने दिल में इतराफ़ किया था। इसे हमेशा सिचुएशन के हिसाब से उल्ट ही चलना होता था। है गुल जानी, जल्दी से ये ख़त्म करो, मेरे पास एक प्लान है। हिना की आंखें चमकी थी। गुल इसे देख कर रह गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? शबनम गुल को अपने पोर्शन में दाखिल होता देखकर चलाए थे। गुल के चेहरे का रंग फक पड़ा था, टांगें लरसने लगी। वो तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, मगर हिना के प्लान के मुताबिक इसका आना ज़रूरी था। क्या हो गया है? क्यों चीख रही हो? इसी वक्त आफताब बिना शर्ट के टॉवल से बाल रगड़ते हुए कमरे से बाहर निकला। गुल को देखकर बेसाख्ता ठहर गया। सहमी सहमी से मजीद घबराई से अपने दिल में उतरती हुई महसूस हुई थी। गुल की नज़र बिला इरादा इसकी तरफ उठी और अगले ही लम्हे वो करंट खाकर नज़र चुरा गई। अस्तगफिरुल्लाह। उसने दिल ही दिल में तौबा करनी शुरू कर दी थी। यहाँ कर वो शदीद बुरा फंसी थी। अरे गुल, तुम और यहाँ? आफताब की हैरत ज़दा आवाज़ गूंजी थी। शबनम ने तब कर भाई को खोया खोया अंदाज और बेकरारी को देखा था और तेज़ कदम चलकर नजरें ज़मीन में गाड़ी खड़ी। गुल के पास ही क्या है? अब क्या हमसे भी भीख मांगने आई हो? लहजे में शदीद हकारत और नफरत समाये वो संगदिली से बोली थी। गुल ने तकलीफ से इसे देखा था। चुप कर ये सारा मंजर देखती हिना के माथे पर बल पड़े, इससे पहले कि वो जाकर शबनम को कुछ सुनाती। गुल ने ही शबनम को झटका दे दिया। नहीं जी, वो मैं ये भीख आपके लिए लाई हूँ। गुल के लबों से बेसाख्ता कुछ गलत निकल गया। आफ्ताब ने मुंह पर हाथ रखकर हंसी को कंट्रोल किया, जबकि हिना ज़मीन पर सजदे में गिरी पागल की तरह हंसने लगी थी। गुल अपने भोलेपन में शबनम को की ऐसी की तैसी कर गई थी। क्या क्या बोला है तुमने? शबनम गज़बनाक होती जी थी। वो हमारा मतलब है, माहिर साहब ने आपके लिए चीज़ें भेजी हैं खाने को। उसने जल्दी से एक भारी छाप शबनम की तरफ बढ़ाया। रियली? माहिर ने मेरे लिए? ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। शबनम को मारे खुशी और हैरत के चक्कर आने लगे। इसने तेज़ से शापर इसके गुल के हाथों से झपटा था। आफ्ताब मुस्कुराहट दबाई ये सारा मंजर देख रहा था। मैं चलती हूँ। गुल तेज़ से बांह से खिसक गई। आफ्ताब की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया था। वो वहीं सोफे पर बैठ के जल्दी से शापर खोलने लगी। जोर से इसने पिज़्ज़े का डब्बा खोला। अंदर से
चूसी हुई हड्डियाँ, केचप के खाली पैकेट के साथ और भी बहुत कुछ था, मगर खाने के लायक कुछ नहीं था। आफ़ताब हँसता हुआ वहीं गिर गया, जबकि शबनम की हालत गुस्से और दुःख की शिद्दत से ख़राब हो चुकी थी। हिना वो गुस्से से ताड़ी थी, वो जानती थी ये हरकत हिना की ही हो सकती है। माहिर कभी इससे इतना फ्री नहीं हुआ। हिना ने ज़ोरदार कहका लगाते हुए उसके हाथ पर हाथ मारा। वो भी फीका सा मुस्कुरा दी, मगर सच तो ये था कि इसे ये सब करके अच्छा नहीं लगा था, मगर हिना की खुशी देखने लायक थी। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? माहिर ने अपने सामने बैठी गुल को देखकर संजीदगी से सवाल किया। इसने कुछ देर पहले हिना को टेक्स्ट किया था कि गुल के साथ वो फ़ौरन इसके कमरे में पहुंचे। गुल का चेहरा मज़ीद झुक गया था, इसकी जान निकलने को आ गई थी। ये सवाल इसके लिए बहुत ही ख़तरनाक था, मगर वो जानती थी कि एक ना एक दिन इससे ये सवाल ज़रूर किया जाएगा। वो ये भी जानती थी कि वो इन मोहब्बत से गूंदे पुरखलूस बहन भाई के साथ हमेशा नहीं रह पाएगी। जवाब दो गुल, हिना ने आस्ता आवाज़ में पुकारा। वो खामोश रही। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मेरी बात का। गुल, माहिर के लहजे में सख्ती आ गई थी। गुल चौंक गई थी। आज इसने पहली बार इसे गुल कहकर पुकारा था, वरना वो हमेशा से मिसनी कहकर बुलाता था। साहब, मैं सुबह ही आपके घर से चली जाऊंगी, मगर आप मुझसे ये सवाल मत करें। बहती आंखों से साथ वो उठ खड़ी हुई थी। माहिर का माथा ठटका था। दाल में कुछ ज़रूर काला था। सुनो लड़की, खबरदार, जो इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला, टांगे तोड़कर हाथ में रख दूंगा। इसकी धमकी सुनकर गुल के कदम बेख्तियार एक लम्हे के लिए रुक कर फिर वो तेज़ी से बाहर निकल गई। हिना मेरे भाई का कंधा थपथपा के इसके पीछे निकल गई थी। खिड़की से कान लगा कर ये सब सुनते शबनम और आफ़ताब की आंखें चमक गई थी। क्या हाल है जान? भाभी और गुड़िया कैसी हैं? हारून नहीं आया अभी? माहिर ने जान यूसुफ से बगल घेर होते हुए हाल चाल पूछा था। इसका जिगरी यार था। जाना भी ठीक है, और गुड़िया भी पता नहीं है हारून कहाँ रह गया है। जान ने मुस्कुराते हुए बताया था। लो आ गया हारून भी। माहिर ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा। जान ने इसकी नज़रों से किताबों में देखा। सामने वो सैर अंगेज शान शौकत वाला शख्स चलता हुआ नजर आ रहा था। पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस, आंखों पर सन ग्लासेस लगाए हुए तेजी से चलता हुआ इनकी तरफ बढ़ रहा था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी इसकी जमी रंगत पर खूब जच रही थी। सीने पर इसके नाम की तख्ती लगी हुई थी, हारून बादशाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो यारो? वो बारी बारी दोनों से बगल गैस होता पूछने लगा। चेहरे पर नम से मुस्कुराहट थी। शुक्र जो एसपी साहब को हमारा हाल पूछने का भी ख्याल आया। माहिर ने जान को आंख मारते हुए कहा। यार काम बहुत होता है, फुर्सत नहीं मिलती। हारून नरमी से बताने लगा। वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हारून और माहिर तो बचपन के दोस्त थे। इस स्कूल के पहले दिन से इनकी दोस्ती हुई थी। माहिर को पहली नज़र में ही अपने साथ बैठा बच्चा बहुत अच्छा लगा था। इसकी आंखों में चमकती उदासी से इसकी तरफ खींचने लगी थी। इन दोनों की आदत बहुत मुश्तरक थी। वो तो फिर भी मुस्कुरा लेता था, मगर हारून को इसने कभी दिल से मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। इसके चेहरे पर कभी कभार ही मुस्कुराहट फूटती थी, वो भी मसनूई। जान यूसुफ से इन दोनों की मुलाकात एक केस को हल करने के दौरान हुई थी। वो अपनी बीवी का कज़न, जिसने इसकी बीवी और सास ससुर पर कातलाना हमला करवाया था, इसके सिलसिले में आया था। तब इन चंद मुलाकातों में इन तीनों की खूब बन गई थी। जान ने भी हारून की तरफ अपना बाप खोया था की तरह बाप खोया था। पहले तो वो सिर्फ दोस्त थे, मगर जान ने कुछ इस तरह खूबसूरत अंदाज से इन दोनों के बीच में आया कि ना इनके बीच फासले बढ़े, बल्कि वो सब आपस में एक दूसरे के बहुत करीब हो गए। आज वो काफ़ी अरसे बाद हलवा पूरी का नाश्ता करने के लिए अपनी पसंदीदा जगह पर इकट्ठा हुए थे। अरे वाह यार, मज़ा आ गया। काश हम रोज़ साथ मिलकर नाश्ता कर सकते हैं। जान ने हाथ टिश्यू से साफ करते हुए हंसरत से कहा। वो दोनों मुस्कुरा दिए थे। इस वक्त जान का फ़ोन बजने लगा। जान कॉलिंग, लगता है भाभी जी इन एक्शन। माहिर इशारे से हंसा था। जान से आंखें दिखाता ज़रा साइड पर जाकर खड़ा हो गया। मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। और उन घड़ी देखते हुए खड़ा हो गया। सुन यार, आज तो दोपहर में फ्री होगा, मुझे तुझसे एक ज़रूरी बात करनी है। माहिर ने हारून को मुखातिब करते हुए कहा। श्योर, मिलते हैं फिर लंच पर। वो मुस्कुराकर दोनों से मिलता हुआ चला गया। वो दोनों भी अपने अपने रास्ते चल पड़े थे। क्या हाल है बेटी? मेरा माहिर कैसा है? अमना बेगम फ़ोन पर हिना से बेताब होती हुई दरियाफ्त कर रही थी। डोंट वरी मम्मी, हम सब ठीक हैं, भैया भी ठीक हैं, और वो आपके ऊपर वाले दो लाडले भी। ना चाहते हुए भी हिना के चेहरे पर करवाहट तराई थी। और वो लड़की चली गई है? उन्होंने संजीदगी से पूछा। हिना एक लम्हे के लिए चुप हो गई थी। बाबा कैसे हैं? दादू की तबीयत कुछ संभली? इसने तेज़ी से बात बदली थी। हाँ, तुम्हारे बाबा भी ठीक है, और दादू के लिए बस दुआ करो और मेरे सवाल का जवाब दो। उन्होंने इस बात सख्ती से पूछा। क्या मम्मी यही है? वो झंझनाई थी। क्या मतलब? दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? मैंने माहिर से कहा था कि इसे अगले दिन फ़ौरन घर से निकाले। तुम लोग मेरी गैर मौजूदगी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। बस में मामूल शुरू हो चुकी थी। हिना ने उकताकर कॉल काट दी। गुल के बारे में सोच के इसका दिल परेशान हो रहा था, और इसका मामला कुछ मशकूक भी लग रहा था। जूते पैर में रसते हुए वो इसे ढूंढने बाहर निकल गई थी। क्या कर रही हो गुल? शबनम इसके पास आकर खड़ी होकर मीठे लहजे में पूछने लगी। जब वो माहिर की बातों से परेशान होकर लॉन में खड़ी सामने को तक रही थी, गुल ने नहायत हैरत से शबनम को देखा। शबनम इसकी नज़रों का मफ़हूम
जानकर कसियानी से मुस्कुराई थी, मुझे माफ़ कर दो कल रात के लिए। इसने चॉकलेट इसकी तरफ बढ़ाते हुए माजरत की थी। गुल ने एक नज़र इसके हाथ में पकड़ी चीज़ को देखा और दूसरी निगाह इसके चेहरे पर दोहराई। से वाक़ई वो शर्मिंदा लगी थी। कोई बात नहीं शबनम जी, वो खुले दिल से मुस्कुराई थी। ओह थैंक यू सो मच, ये चॉकलेट लो ना। नहीं शबनम जी, ठीक है बस। उसने फ़ौरन इनकार किया था। देखो ले लो ना, वरना मुझे ऐसा लगेगा तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। शबनम ने दुखी अंदाज में अदाकारी करते कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है शबनम जी, खैर है। गुल को अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा चलो आज इकट्ठे खाना खाते हैं। गुल का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती से ले जाने के लिए मुड़ी के पीछे सीने पर हाथ बांधकर आबरू कुचका ऐसे देखती हिना को देख कैसे ज़बरदस्त झटका लगा था। क्या बात है शम्मा मासी, बहुत हमदर्दी हो रही है, कुछ चोरी करवानी है इसे। इस सजाई अंदाज में कहकर इसने गुल का हाथ छुड़वाया था। शराब शबनम ने दांत पीसे थे। ये चोरी का था ना, इसे चाबुक की तरह लगता था, मगर इस आदत से छुटकारा पाना भी इसके लिए मुश्किल नहीं, इसके बस में नहीं था। अब किसी और की चीज़ इसे पसंद आ जाए तो इसे भला क्या ज़रूरत थी फजूल खर्ची करने की। और दुनिया के सारे लोग इसके अपने थे तो भला इसे इजाज़त की क्या ज़रूरत थी। ऐसे ही सही। सेम टू यू शब डार्लिंग, वो इत्मीनान से कहकर गुल को लिए बांध से निकल गई थी। सॉरी यार, मैं कुछ दिनों के लिए तुझसे नहीं मिल सकता, शहर से बाहर जा रहा हूँ। जैसे ही घर आऊँगा फ़ौरन तुझसे मिलूंगा। हारून का मैसेज पढ़कर माहिर ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया, इट्स ओके जान। और काफ़ी का कप उठाकर बाहर निकला। रात का वक्त था, सब सो गए थे। वो गुल के बारे में सोच रहा था, जैसे देखते ही वहाँ से भाग जाती थी जहाँ वो मौजूद होता था। शायद वो इससे डर रही थी, मगर वो सिर्फ इसकी मदद करना चाहता था। अपने ख्यालात में वो चलता हुआ लौन तक आया था कि सिसकी की आवाज़ इसके कानों से टकराई थी। उसने चौंक कर इसकी तरफ देखा और वो गुल ही थी, हिना के झूले पर बैठी आसमान की तरफ चेहरा किया रोती हुई। चाँद की रोशनी में उसका चेहरा चाँद सा ही पहचान गया था। रो क्यों रही हो? इसके करीब आके इसने नरमी से सवाल किया। इसका लहजा चाँद की रोशनी जैसा ठंडा और नरम था। इसके देखते ही गुल ने घबराकर वहाँ से भागना चाहा, मगर इसके दुपट्टे का पल्लू माहिर के हाथ में आ गया था। बेतरतीब धड़कने लिए सही वही ठहर गई थी और रानगी से माहिर को देखा। कुछ पूछा है मैंने? इसका लहजा अभी भी इतना ही नरम था। गुल के आंसू मज़ीद तेज़ी से बहने लगे थे। वो दुपट्टा छोड़े साहब, हमें अपनी से बहुत प्यारी है, हमें लोगों के सामने रुस्वा मत करें। उसके लहजे में छुपा शिकवा किसी तीर की तरह माहिर को लगा था। इसने मज़ीद सख्ती से इसका पल्लू अपनी गिरफ्त में भींचा था। सुनो लड़की, एक बता, जो मेरे बारे में कुछ ऐसा वैसा सोचा, अगर इतना ही घटिया होता तो आज इज्जत से मेरे घर ना रह रही होती तुम। वो चबा चबा कर बोला था और झटके से छोड़ता हुआ लंबे लंबे डाक बढ़ता वहाँ से निकल गया। पीछे वो चेहरा हाथों में चुबाते फुट फुट कर रोने लगी थी। आफ्ताबी मंजर देखकर शैतानी से मुस्कुराता हुआ पर्दा गिरा गया था। क्या हुआ गुल, तुम क्यों रो रही हो? माहिर के जाने के बाद वो परेशान सी एक बार फिर से रोना शुरू हो चुकी थी। पहले तो अम्मा अब्बा की परेशानी ने इसका दिल बोझा कर रखा था, ऊपर से माहिर भी गुस्सा हो गया था। और अभी आफ्ताब किसी मुसीबत की तरह हर वक्त इसके सर पर मंडलाता रहता था। कुछ नहीं साहब, हाथ के बुझ से आंसू रगड़ कर जल्दी से उठ गई ताकि अंदर जाकर अपना ले सके। अपने घर वालों को याद कर रही थी आफ्ताब के पास पर इसके कदम जैसे रुके थे। इसका दिल बुरी तरह काम किया था। वो कैसे जानता था, कहीं वो जान तो नहीं है? जी नहीं, वो हकला कर बोली थी। अच्छा अगर तुम किसी बात से परेशान हो तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकूं। मुस्कुराया था। गुल ने एक नज़र मुड़ कर से देखा। वो चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट से देख रहा था। एक मिनट के लिए इसके दिल को कुछ कुछ हुआ था, मगर यही पर वो अंदर घर में भाग गई थी। से भागता देखा आफ्ताब ने जरा स्टाइल से बात पेश की। बेशक ये शिकार अपने जाल में फंसाना काफ़ी मुश्किल था, मगर अभी इसने हार नहीं मानी थी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वो जूं ही पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ, स्लूट के साथ बहुत सी सलामती बेचने की आवाज़ इसके कानों से टकराई थी। मुस्कुरा कर सर हिलाता इनके जवाब देता हुआ चेयर पर जा बैठा था। सर कॉफ़ी लेंगे? कांस्टेबल अमजद ने इसके पास आकर पूछा था। श्योर, वो हल्के से मुस्कुराया था। और सुनाओ, कैसे रहे हालात मेरे कराची जाने के बाद? एक फ़ाइल खोलकर इस पर सरसरी निगाह डालता वो बाकी सबसे पूछने लगा। सर इन 3 फाइलों में कोई ख़ास केस नहीं आया? हमज़ा के कहने पर वो हल्के से मुस्कुराया था। कोई ख़ास केस आया नहीं है? तुम लोगों से ने ख़ास से समझा नहीं? अरे नहीं सर, आपकी सरपरस्ती में हम भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? यासिर ने मक्खन लगाया था और सर झुक कर रह गया। साहब मेरे को बचा लो साहब, मुझे इंसाफ़ दिलाओ, मुझे इंसाफ़ दिलाओ। इसी वक्त एक मैला कुचैला सा शख्स अजीब फटे पुराने कपड़ों में भागता हुआ अंदर आया था और हारून के कदमों में गिड़गिड़ाने लगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? वो गड़बड़ाकर जल्द से उठ खड़ा हुआ, साथ ही इस आदमी को सहारा देकर उठाया था। पानी लाओ अमजद, वो अमजद से मुखातिब हुआ और साथ ही आदमी को सहारा देकर बेंच पर बिठाया था और पानी का गिलास इसके लबों से लगाया। जैसे वो घटाघट एक ही सांस में हलक से उतार गया था। क्या हुआ है आपको? मुझे बताया, वो नरमी से बोला था। इसकी आंखों में नरम सा तासुर था। साहब मैं लूट गया हूँ, बर्बाद हो गया, मेरी घरवाली को मार दिया गया, मेरे साला और साली को भी मार दिया गया इस भेड़िया ने, मेरे पास कुछ नहीं बचा। साहब मैं पहले भी यहाँ आया था, मगर मुझे किसी ने घुसने ही नहीं दिया। वो बोलता हुआ बुरी तरह हमने लगा था। हारून ने गजबनाक नज़रों से सभी चोर बने कांस्टेबल की तरफ देखा था। तुमसे बोला नहीं जा रहा, कुछ खाया है आपने? इसकी बुरी हालत देखकर हारून के दिल को कुछ हुआ था। साहब 2 दिन से भूखा हूँ। इसकी आंखें डबडबा गई थी। और नाम क्या है तुम्हारा? बख्शो, मेरा मतलब है अल्लाह बख्शो, वो हलकलाते हुए बोला था। मेरे साथ मेरे घर चलो अमजद, इसे
मेरी गाड़ी में बिठाओ। सख्त नज़रों से सबको देखते हुए इसने अमजद को ऑर्डर दिया था। ओके सर। अमजद ने इसे सलूट मारा और बख्शू को ले वहाँ से निकल गया। वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ आया था। सामने गुल बड़े ज़ोरों-शोर से बर्तन मांजने में मसरूफ़ थी। बेख्तियार वो आँखें घुमाकर रह गया था। आजकल वो उसे दिखती ज़रूर थी लेकिन किसी काम में बिज़ी। किसी की मौजूदगी को महसूस करके गुल ने पलट कर देखा। सामने खुद को गहरी नज़रों से देखते माहिर को देखकर उसके हाथ में मौजूद बर्तन ठाह से सिंक में जा गिरा था। वो दोबारा माहिर से नज़रें भी मिलाने के काबिल खुद को नहीं समझती थी। हाथ धोकर जल्द से इसने वहाँ से भागना चाहा मगर माहिर ने अपना बाजू इसके रास्ते में हायल कर दिया। एक झटके से वो रुक गई थी। वो शायद इसके मन में उल्टे-सीधे जज़्बात रखने लगी थी। तब भी माहिर ने इसकी गलतफ़हमी को ख़त्म करना चाहा। वो जो शेल्फ़ के साथ पुश्त टकाए खड़ा था वैसे ही बाजू हायल किए सीधा हुआ और उसकी तरफ कदम बढ़ाया। गुल नर्वस सी पीछे खिसकती इस शेल्फ से जा टकराई थी। भाग कहाँ रही हो? तुम्हें लगा मैं तुम्हारा शौहर हूँ जो सबसे चोरी छुपे इधर तुमसे रोमांस करने आया हूँ और तुम एक शर्मीली बीवी की तरह भागने वाली कर रही हो? एक हाथ शेल्फ पर रख वो ज़रा सा झुकते हुए पूछने लगा। गुल मज़ीद नीचे को सिमट गई थी। बताओ न से देखता पाकर माहिर ने इसे के सामने चुटकी बजाई थी। साहब ये रोमांस क्या होता है? इसके सवाल में माहिर ने आंखें बंद करके खुद के अंदर उबलते गुस्से और हंसी के मिले-जुले जज्बात को कंट्रोल किया था। शिट! फिर कहते हुए सर पर एक जोरदार मुक्का मारा था। वह इस बेवकूफ़ लड़की से इस तरह के जज्बात की तवक्को भी कैसे कर बैठा था जो इसको सुधारने चल पड़ा। साहब ये शिट क्या होता है? गुल के अगले मासूमाना सवाल पर माहिर ने बेख्तियार कानों पर हाथ रखा। ओह गॉड प्लीज़ सेव मी! वो कानों पर हाथ रखे कहता हुआ वहाँ से भाग गया। इन्हें क्या हुआ? वो सोचती रहेगी। जी तो चाचा आप कौन हैं? कहाँ से हैं? और क्यों इस हाल में हैं? सब कुछ अलिफ से लेकर ये तक बताएँ मुझे। हारून ने सामने बैठे बख्शू को मुखातिब किया था जिसकी हालत खलक से खाना उतारते और नहाने-धोने के बाद काफ़ी बेहतर हो गई थी। साहब मेरे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। जब सब कुछ याद करता हूँ तो कलेजा फटता है। मैं क्या करूँ? वो घुट कर रोने लगा था। देखिए आप रोएँ मत, आप हौसला रखें और हिम्मत करके मुझे सब बताएँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की और आपके साथ ये जो ज़ुल्म हुआ है इसका बदला लूँगा। इसने बख्शू का हाथ थामते हुए बेहद नरमी से कहा था। बहूरे दिलकश आँखों में उदासी की चमक आज भी वैसी ही थी। अपनी आँखों से बहते आंसू पोंछते हुए बख्शू अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाने लगा। वक़्त के साथ-साथ हारून की आँखों की भी लाली बढ़ गई थी। गुल ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर कमरे में झाँका। हिना कब की सो चुकी थी और लगता है आज हिना जी पानी का लोटा भरना भूल गई हैं। इसने साइड टेबल पर पड़े पानी के खाली जग को देखते हुए खुद को मुखातिब किया और शीशे के खूबसूरत जग को लोटा कहकर बेचारे जग को तरफ जाने पर मजबूर कर दिया था। खड़ा होने पर वो चौंकी और एहतियात से खटका होने पर वो ज़रा चौंकी और एहतियात से कमरे से बाहर जंगला पे तसल्ली करके बाहर आई थी। थोड़ा ही आगे चली थी कि किसी ने सख्ती से इसका मुँह दबोच के कमरे में खींच लिया था। वो दबी-दबी चीखों के साथ खींची चली गई थी। कमरे में अंधेरा था। थोड़ी देर बाद लाइट जलने पर गुल ने अपनी खौफ से बंद की हुई आँखें जल्दी से खोली थी। सामने खड़े शख्स को देखकर बेख्तियार इसके मुँह से निकला था छोटे साहब और माहिर ना चाहते हुए भी एक बार अपना माथा पीट चुका था। माहिर ने छोटे साहब पर बमुश्किल खुद को कंपोज़ किया था। माहिर साहब आपने मुझे डरा ही दिया। आपको कोई काम था? उठती-गिरती पलकों के साथ वो धीमे लहजे में बोली थी। हाँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। माहिर का लहजा ख़िलाफ़े मामूल संजीदा था। गुल इसके अंदाज़ पर चौंक गई थी। जी कहिए, वो ख़दशात को दबाते हुए बोली थी। मम्मा का पैगाम आया है। वो कह रही हैं कि अभी और इसी वक्त तुम्हें घर से निकाल दूँ। माहिर के अल्फ़ाज़ और लहजे की सख्ती पर गुल दंग रह गई थी। दिल खौफ़ से सिकुड़ गया था। इस शख्स के होते हुए इस घर में इसे इतनी अपनाहत मिली थी, इतना तहफ़्फ़ुज़ सुकून मिला था कि वो अपने हौलनाक माज़ी को तो भूल ही गई थी। जैसे ये घर इसका अपना हो, ये यहीं रहना हो। मगर अब ये क्या वक़्त आन ठहरा था। गहरी साँस लेकर उसने आँखों में उमड़ते आँसू को पीछे की तरफ धकेला था। जी, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। कुछ देर बाद वो सर उठाती मजबूर लहजे में बोली थी। माहिर खामोश रहा था। गुल आस्ते से पलट गई। कदम मन-मन के भारी हो रहे थे। आँखों में नमकीन पानी किसी समुंदर की तरह उमड़ता चला जा रहा था। दिल खौफ से बैठा जा रहा था। वो इतनी रात गए कहाँ जाएगी? माहिर बगौर इसकी सुस्त चाल को देख रहा था। कहाँ जा रही हो? बाहर वो शख्स तुम्हारे इंतज़ार में खड़ा है जिससे भागकर तुम यहाँ आई हो। माहिर ने अंधेरे में दीप जलाया मगर अगला लम्हा नहायत गैर मुतवक्का था। गुल अचानक बदहवास होकर पीछे मुड़ी थी और आते ही इसकी शर्ट को सख्ती से जकड़ लिया। खान वो यहाँ कैसे आ गए? माहिर साहब आप पर आपका वास्ता है, मेरे बारे में उसे मत बताना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे बचा लो। बहते आंसू के साथ इसके सामने हाथ जोड़ती वो गिड़गिड़ा रही थी। गीले रुखसार गुलाबी होंठ और घनी स्याह पलकों के साथ वो रोई हुई सी उसे बहुत अच्छी लगी थी। इसका दिल बेख्तियार पूरी तरह से दरक उठा था। रिलैक्स, बाहर कोई नहीं है। गुल इसके जुड़े हाथ नीचे करते हुए नरमी से बोला था। साथ ही गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल किया। आज इसे इस बात पर यकीन हो चला था कि एक अकेली औरत और मर्द के बीच में तीसरा शैतान होता है। गुल के बहते आंसू वहीं रुके थे
میں صرف سچ جاننا چاہتا ہوں، اس سے لی ایسا کہا۔ اس نے وضاحت دی تھی۔ گل پل بھر کے لیے خاموش رہ کے پھر وہاں سے بھاگنے کے لیے تیز سے پلٹ گئی، مگر ہمیشہ کی طرح اس کا پلو ماہر کی گرفت میں آ گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ رک گئی تھی۔ ایک قدم آگے بڑھی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بتاؤ مجھے، یہ خان کون ہے کہ جس کا نام سن کے اتنا ڈر جاتی ہو؟ کیوں اسے چھپتی پھر رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ۔ ماہر سخت لہجے میں ماہر اسے مخاطب ہوا تھا۔ کچھ دیر کشمکش میں رہنے کے بعد گل نے سر جھکا لیا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں شفاف پانی تیر رہا تھا۔ اس شفاف پانی میں ایک چھوٹا سا گاؤں لہر رہا تھا۔ اس گاؤں میں اس کی بہت سی یادیں تھیں، اچھی بری سب، اور اس کا گاؤں تھا اسے گل کا گاؤں۔ وہ اپنے اوپر بیتتی ہر ایک چیز کو بتاتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود اس وقت زلزلوں کی زرد میں تھا۔ ماہر تو حیران سے اس کو روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے اتنی مشکلات برداشت کی تھی۔ خان اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے اپنے باپ کا درجہ دیتی تھی۔ وہ گاؤں کا سردار تھا، سب لوگ اس سے ڈرتے تھے، لیکن گل پر شروع سے ہی اس کی نظر تھی اور وہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا، اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے مراد سے بھی بات کی تھی۔ لیکن مراد بھی جانتا تھا کہ انکار کی صورت میں اس کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اس لیے مجبوراً اسے بھی حامی بننی پڑ گئی تھی۔ لیکن ایک دن مراد کی بیوی نے اپنی بیٹی کو گھر سے بھگا دیا تھا۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے اتنی مشکلات برداشت کی تھی۔ اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ کو چھوڑنا کتنا آسان ہوتا ہے، اور کیا اس کی ماں کے لیے اپنی جوان بیٹی کو اکیلے اس ظالم دنیا کے حوالے کر دینا اتنا آسان ہوگا؟ اس کا دل درد سے پھٹنے لگا تھا۔ اگر آج گل کی جگہ اس کی بہن ہی نہ ہوتی، اسے آگے سے سوچا نہ گیا، کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا گل کی تکلیف کا، اس کے ماں باپ کے درد کا۔ نہ جانے اس کے ماں باپ کا کیا حال ہوگا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس لڑکی کے لیے جتنا کچھ اس سے ہو سکتا تھا اس نے کرنا تھا۔ وہ تیزی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ گل سنو، تم رونا بند کرو۔ دیکھو، رونے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہمیں ڈرنے کی بجائے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میرے یقین کرو، میں تمہارے لڑوں گا اور تمہیں تمہارے گھر، تمہارے ماما پاپا کے پاس سے چھوڑ آؤں گا۔ تم فکر مت کرو۔ اس نے گل کو تسلی دی تھی۔ وہ سر جھکا کر ہاتھ کی پوچھتے سے آنسو رکھنے لگی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ ماہر کا لہجہ شعلہ بار تھا، ایک جنون تھا اس کے لہجے میں۔ گل فقط اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ یہ شخص اس کے لیے کیوں اتنا حساس تھا؟ رشتہ ہی کیا تھا گل سے اس کا اور اس کے بیچ؟ پھر ایک خیال آنے پر اس کے رخسار سرخ پڑ گئے تھے۔ چوری چوری ایک محبت بھری نگاہ اس نے ماہر پر ڈالی تھی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ جلدی سے واپس نظر جھکا گئی۔ چلو تم کمرے میں جاؤ، کافی لیٹ ہو گیا ہے، اب سو جاؤ۔ وہ مسکرا کر اسے دروازے تک چھوڑنے آیا تھا۔ گل دھیمی سی مسکان لبوں پر سجائے اس کے کمرے کی دہلیز سے پار کر گئی تھی۔ جاتے ہوئے اس نے ایک بار ماہر کو مڑ کر دیکھا تھا، جو جواباً ماہر نے ہاتھ ہلاتے ہوئے اسے اسمائل اس کی طرف پاس کی تھی، اور اوپر سے یہ سارا منظر شبنم نے بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ او مائی گاڈ، میرا سر پھٹ جائے گا، میں اس گنی مسنی کو چھوڑوں گی نہیں۔ اس کی اتنی جرأت جو ماہر پر ڈورے ڈالے بنا نوک کیے وہ دروازہ دھکیلتی ہوئی اندر آئی اور آتے ہی چیخنا شروع کر دیا۔ فون پر مصروف آفتاب نے نہایت ناگواری سے اس کی حرکت دیکھی تھی۔ تمہارا پرابلم کیا ہے؟ نہ خود چین سے ایک جگہ بیٹھتی ہو، نہ دوسروں کو ٹکنے دیتی ہو۔ اب کیا آفت آ گئی ہے جو اتنی رات چڑھے میرے کمرے میں دندناتی پہنچ گئی؟ آفتاب نے بنا کوئی لحاظ کیے اسے جھاڑ پلائی تھی۔ تم جانتے ہو آفتاب، وہ مسنی گل ابھی ماہر کے کمرے سے نکل کر آ رہی ہے، اور ماہر کو دیکھو فدا ہوا جا رہا ہے اس پر۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے روحانسی لہجے میں بولی تھی، جو بھی ماہر ایسا نہیں ہے۔ آفتاب کو ماہر لاکھ برا لگتا ہو، مگر اس کے کردار کی گواہی وہ اپنی بہن کے سامنے دے ہی سکتا تھا۔ ہاں بالکل، ماہر ایسا نہیں ہے، مگر وہ گنی تو ایسی ہی ہے نا۔ وہ اب باقاعدہ آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ اب رو مت، میں نے شام ماہر کو فون پر کہتے سنا تھا وہ کسی سے کل یہاں گھر پر ملے گا۔ دیکھتے ہیں وہ کہیں گل کا بندوبست تو نہیں کر رہا، یا پھر ہمیں ہی کرنا پڑے گا۔ بات کرتے ہوئے آفتاب کے چہرے پر شیطانیت جھلکنے لگی تھی۔ کیا لے گا، چائے یا کافی؟ ماہر نے مسکرا کر اداب میزبانی نبھائی۔ کولڈ ڈرنک۔ ہارون کی آنکھوں میں شرارت چمک دوڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی ماہر کا لیکچر شروع ہو جائے گا کہ اتنی ٹھنڈ میں یہ بد احتیاطی اچھی نہیں ہے، بیمار پڑ جاؤ گے، تمہاری ماما پریشان ہو جائیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عالیہ ہارون کے لیے کس قدر حساس تھی۔ اور ہوا بھی یہی۔ ہارون نے اس کے لیکچر کو خوب انجوائے کر کے اینڈ پر کافی منگوا لی۔ ماہر اس کی ڈٹائی پر نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ ہاں بول، کیا بات کرنی تھی تجھے؟ ہارون اب موضوع پر آیا تھا۔ یار، پرابلم بہت بڑی ہے اور تیری ہیلپ کی بہت ضرورت ہے، ماہر پریشان سے لہجے میں بولا تھا۔ کھڑکی کے پاس چھپے
शबनम आफ़ताब अलर्ट हो गए थे तो इस चीज़ के इंतज़ार में थे, तो बोल ना खामोश क्यों है? अरुण ने सीधा होकर बेटा कुछ दिन पहले मुझे रात के वक़्त एक लड़की सड़क पे पड़ी मिली हुई थी, बेसहारा, बहुत बुरी हालत थी और इससे बात करने के बाद पता चला कि ज़माना कदीमी से ताल्लुक़ रखने वाली हो। जैसे माहिर गुल की बोंगे याद करके मुस्कुराया। ओहो! हारून पुरसोच अंदाज़ में हंकारा। इसका ज़हन तेज़ी से काम कर रहा था और इसका नाम उसे गुल है ना? हारून ने इसकी बात बीच में ही अटक ली थी। तुझे कैसे पता? माहिर हैरत ज़दा रह गया था। इस लड़की के अंकल इस वक़्त मेरे घर में है, मेरी हिफाज़त में, और इनकी ज़ुबानी इसकी सारी कहानी सुन चुका हूँ और मैं हैरान हूँ कि दोनों केस सेम हैं। हारून ने इत्मीनान से इसके सर पर बम फोड़ा था। माहिर दंग रह गया था। इस वक़्त हिना अज़्म लवाज़मात की ट्राली उठाती हुई अंदर आई थी। वो दोनों खामोश हो गए थे। ना चीज़ें टेबल पर सेट कर दी, वहाँ से चली गई। इसके अंकल तेरे पास हैं और इसके मॉम और डैड? माहिर ने बेताबी के साथ हारून से पूछा था। बाहर बैठे शबनम आफ्ताब के काम पूरी तरह खड़े हो गए थे। हारून एक निगाह बाक उड़ाते कॉफ़ी के मग पर डाली। इनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। ओह! माहिर के मुँह से दुःख भरी आह निकली थी। हमारे सदमे के कुछ लम्हों के लिए इसकी ज़ुबान गंग रह गई थी। मुझसे जब तक हो सकेगा गुल से ये बात छुपाऊँगा। वो पहले ही बहुत हर्ट है और अब मज़ीद नहीं सह पाएगी। उसने दिल में सोचा था। कुछ लम्हों के लिए वो खामोशी छा गई। फिर अब क्या करना है? ये माहिर की आवाज़ थी। फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। हारून ने कॉफ़ी का मग लबों से लगाया। लेकिन क्यों? माहिर हैरान हुआ था। वो एरिया मेरे अंडर नहीं आता। मुझे फ़ौरी अपना ट्रांसफ़र करवाना होगा। तुम जानते हो इसमें भी काफ़ी वक़्त लग जाएगा। हारून के बताने पर माहिर उस सोच में पड़ गया था। सिफ़ारिश से काम जल्दी हो सकता है। माहिर ने मुस्कुराया। मैं किसी से भीख नहीं माँगने वाला। हारून के चेहरे के तासुरात बिगड़े थे। अबे यार, उल्टा सीधा मत सोच। हमें किसी से भीख माँगने की ज़रूरत भी नहीं है। अपना जिगरी यार है ना जान यूसुफ़, इसकी सिफ़ारिश ही काफ़ी है। ये हो सकता है। हारून के चेहरे पर चमक दौड़ी थी। मुझे गुल के काम का एड्रेस नोट करवा। माहिर ने सेल निकालते हुए हारून को मुखातिब किया था। इसके साथ साथ आफ्ताब के हाथ भी अपने फ़ोन की तरफ रेंगे थे। माहिर के ने एड्रेस नोट करवा कर फ़ोन टेबल पर रखा और हारून के साथ साथ बातों में मशगूल हो गया। आफ्ताब और शबनम के चेहरे पर कामयाबी का जश्न ठाठे मार रहा था। अब इस एड्रेस का गलत इस्तेमाल इन्हें किस तरह करना था, ये वो दोनों जानते थे। गुल के नसीब फिर से फूटने को थे। मिस ने एक कप चाय मिलेगी? माहिर इसे ढूंढता हुआ किचन तक आया था। वहाँ वो चेयर पर बैठी ना जाने किन सोचों में गुम थी। जी जी, अभी बनाती हूँ। अभी अपनी सोचों का तसलसल टूटने पर वह गड़बड़ा कर उठी और चूल्हे के सामने जाकर खड़ी होगी। माहिर मुस्कुराकर सर हिलाता फ़ोन में बिजी हो गया। गुल छोटी छोटी संग दिल को देखने लगी थी, जिसका ध्यान ज़रा भी इस पर नहीं था। शबनम ने इससे झूठ बोला था कि माहिर और इसकी मंगनी हो चुकी है और यही बात इसे परेशान कर रही थी। शबनम जी कितनी खुशनसीब हैं जिनके नसीब में माहिर जी लिखे गए हैं। वो हंस माहिर को देखते हुए सोच रही थी। काफ़ी देर इन्हीं सोचों में गुजर गई। हेलो, चाय उबल रही है। माहिर ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई थी। वो यकलख्त होश में आई थी और कदर शर्मिंदगी से चाय की तरफ मतवज्जा हुई। माहिर भी फ़ोन छोड़ के इसकी तरफ मतवज्जा हो चुका था। क्या हुआ मिसनी, कहाँ गुम हो? आजकल नज़र भी नहीं आती। वो उससे बात करने की खातिर खुश दिली से गोया हुआ था। गुल रुख पलटे चाय फेरने लगी थी। इसका दिल लरस रहा था। वो हरगिज़ माहिर को अपने ख्वाहिशों पर तारी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो किसी और की मानना था। वो अपनी सोचों में भी ईमानदार थी। मासूम साफ दिल है जी। जितनी जल्दी हो सके माहिर जी मुझे मेरे अम्मा पापा से मिलवा दे। कब इसके सामने रखती वो हमवार लहजे में कहती वहाँ से चलेगी। ज़रा सी लचक भी इसके लहजे में नहीं थी। माहिर ने इसे रोकने की खातिर इसके दुपट्टे का पल्लू पकड़ना चाहा, मगर वो जा चुकी थी। इसे क्या हुआ? बाप उड़ाती चाय के कप को देखता हैरान सा सोचता रह गया। 2 दिन पढ़ लिखा कर उड़ गए थे। आफ्ताब अपनी दोस्त की एंगेजमेंट से वापस आ चुका था। सबने इसकी तस्वीरों की डिमांड की, जो इसने बाद में दिखाऊंगा कहकर टाल दिया था। माहिर और हारून ट्रांसफ़र की कोशिशों में लगे हुए थे। जान अपनी तरफ से पूरी जोर लगा रहा था। तभी दादू की डेथ की खबर सुनकर सब कुछ इधर का उधर रह गया था। माहिर और हिना को गए 1.5 दिन हो चुका था, क्योंकि वो दोनों गए थे। शबनम, आफ्ताब और गुल घर पर ही थे। इनको हिदायत देने के बाद माहिर चला गया था। उसने सिक्योरिटी भी टाइट कर दी थी। गुल एक नामालूम सी उदासी का शिकार थी। शबनम अजीब सी लड़की थी। वो बात ऐसे करती जैसे काट खाने को दौड़ती हो। आफ्ताब की नज़र तो पहले दिन से ही ठीक नहीं थी। वो हर वक्त एक अजीब से खौफ के साथ में रहती थी। अब अम्मा के साथ साथ हिना और माहिर की याद भी शिद्दत से इसे सताने लगी थी। 2 दिन में ही वो पागल होने को थी। माहिर इसे कॉल करके अपने जल्दी आने की तसल्ली दे चुका था। ये भी दूसरा दिन था। शाम को जब उजाला चिढ़ने लगा और अंधेरा गाल बनाने लगा, वो किचन में चली गई। सामने गंदे बर्तनों का ढेर सिंक में पड़ा हुआ था। इसी का इंतजार कर रहा था। एक थकी सी सांस इसके लबों से खारिज हुई। आफ्ताब और शबनम दिन भर के चर्चे चिढ़ते रहते थे और शबनम को तो
वो तो हराम था जो किसी एक काम को भी हाथ लगाती। बर्तन धोकर इसने किचन की सफाई की, अलमारी चमकाई। शबनम कमरे में बैठी-बैठी टीवी देख रही थी। आफ्ताब बाहर से कुछ खाने को लेने गया होता। खुदा बर्बाद करे खान, तुझको न जाने कितनों की ज़िंदगी तूने बर्बाद कर दी। अकड़ी कमर को सीधा करते हुए खान को बददुआ देने के साथ इसके मुँह से आह निकल रही थी, वरना आज से पहले कभी गुल के लब किसी को बददुआ देने के लिए नहीं खोले थे। अब वो मेज़ पर चढ़ी ऊपर वाली अलमारी साफ़ कर रही थी। बस एक तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ मेरी, अब यही ख्वाहिश बची है। अपने पीछे से आती आवाज़ पर गुल को एक लम्हे के लिए अपनी समातों पर यकीन नहीं आता। इस पल न जाने इसने कितनी दुआएं मांगते हुए रुख बदला कि इसकी सिर्फ समात का धोखा हो, मगर फिलहाल शायद इसकी दुआ को मंजूरी नहीं मिलनी थी, या शायद किसी और वक्त के लिए महफूज कर दी गई थी। तभी सामने खड़े खान को देख इसकी सीटी गुम होगी। अजाब खान से दोबारा इसके सर पर मुसल्लत हो गया। इसका दिल बाहर निकलने को आ गया था। माहिर 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 जी, खान आ गया, बचाओ मुझे। वहशत ज़्यादा सी पूरे घर कुव्वत से चिल्लाने लगी। खौफ की शिद्दत ने इसके ख्वास सिर्फ कर दिए थे। बाल नोचते हुए बुरी तरह खौफ ज़दा होकर पागलों की तरह चीख रही थी। माहिर जो बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी। खौफ की शिद्दत से इसकी सांस उखड़ने लगी थी। खान का महसूस कहका गूंजा था। गुल वहशत ज़दा सी पीछे को खिसकने लगी। तभी इसका पैर पीछे को हुआ और बरकरार तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए मेज़ पर से एक दर्दनाक चीख के साथ मार्बल के फर्श पर जा गिरी। इसका सर पूरी कुव्वत के साथ फर्श से टकराया था। बल-बल खून निकलता फर्श को सुर्ख करने लगा। चीखों के आवाज़ पर शबनम भी दौड़ी-दौड़ी किचन में आई और सामने का मंज़र देखकर इसके होश उड़ गए थे। उसने धीरे से पलकें खोली। सामने धुंधली मगर खस्ताहाल छत ने अपना नज़ारा करवाता धीरे से वाज़ा होने लगी थी। सर में दर्द की शदीद टीसें उठ रही थी। फ़िज़ा में खून की नागवार बू फैल चुकी थी। उसने हिम्मत करके उठना चाहा, मगर नाकामी के साथ कराहते हुए वहीं गिर गई। सर बामुश्किल नीचे को करके इसने अपना जायज़ा लिया। वो इस वक्त एक पुराने पलंग पर लेटी हुई थी। पूरा वजूद रस्सियों में जकड़ा हुआ था और वो खून की नागवार बदबू अपने पलकों पर बहती नमी से इसे महसूस हो गया। अब इसके ज़ख्मी माथे से आ रहा है। दर्द की शदीद लहर उठने पर वो बहती आंखों के साथ बुरी तरह से करा गई थी। या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, पता नहीं कौन सा ऐसा गुनाह सरज़द हो गया मुझसे जो ज़िंदगी का कोई पल चैन से नहीं जी सकी। इसकी सिसकियाँ बुलंद हुई थी। होश ठिकाने आए तो सब कुछ याद आने लगा। तब वहीं पर इसे किसी और की मौजूदगी का भी एहसास हुआ। शबनम जी गुल करंट खाकर रह गई थी। सामने वो कुर्सी पर बंदी सिसक रही थी। चेहरा रोने की शिद्दत से लाल पड़ा हुआ था। आंखें सूजी हुई थी। शबनम जी आप? गुल ठीक से हैरान भी नहीं हो पा रही थी। गर्दन घुमाकर इसने वक्त देखना चाहा। घड़ी तो नज़र नहीं आ रही थी और वो जगह भी खासी अंधेरी महसूस हुई थी। शबनम जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी तो खान से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर आप यहाँ क्यों आई? अब क्या वक्त हुआ है? गुल अपने ज़हन में अपना आने वाले सवालों को ज़ुबान पर लाने से नहीं रोक पाई थी। दिन के 12 बज रहे हैं। वो आंसू से बोझल आवाज़ में इतना ही बोल पाई थी। गुल दंग रह गई थी। वो इतनी देर तक बेहोश रही थी। और क्या खान ने अब तक इसे दुनिया के सामने मुँह दिखाने के लायक छोड़ा था? क्या वो एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी जी पाएगी? कई सवाल इसके दिमाग में उठने पर वो सुन्न सी पड़ी रह गई थी। खान नौज़ी होश में आ गई है। रशीद ने पान ज़दा पतीसी निकालते हुए खान के कान में सरगोशी की है। अच्छा है, सिगरेट का कश लगाते हुए इसका कहका फ़िज़ा में गुजरा था। धुएँ के मरगुले उठकर हवा में गुम हो रहे थे। तो दीदार नहीं करेंगे खान साहब? रशीद की स्थिति मारे शैतानियत के अंदर जाने को तैयार नहीं थी। या मिल लेंगे, थोड़ा तड़पने दो हमारी उसी को, जितना इसने हमें तड़पाया है कुछ हमारा भी हक बनता है। वो कश लगाता खुमार लूत लहजे में कहता जा रहा था। जीतने का नशा इसको मदहोश किया जा रहा था। जी खान साहब, जो आपको बेहतर लगे। रशीद खान के सामने माथा टेकता वहाँ से चला गया। उसी खान इसके हसीन सरापे को तसव्वुर में लाए बड़बड़ाया था। शाम होने को आ गई थी। कोठरी नुमा कमरे में मज़ीद अंधेरा छा गया था। वो तो इन दोनों की खुशकिस्मती थी जो शबनम की कलाई में बंधी घड़ी कम से कम वक्त जानने के लिए काम तो आए थे। कोई इनके कमरे में नहीं आया था सिवाय इस मकरू शख्स वाले रशीद के, जो कमरे में झांकता और हंसता हुआ चला जाता। गुल इसी हालत में पड़ी थी और नहायत अज़ियत का शिकार थी। शबनम की सिसके भी हर थोड़े देर बाद बुलंद होती थी। भूख की शिद्दत से इन दोनों का मैदा सिकुड़ जा रहा था। वो तकरीबन 1.5 दिन की भूखी थी। गुल मुझे बचा लो। शबनम खौफ की शिद्दत से बोल उठी थी। गुल ने नहायत बेबसी से देखा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा खान आपको यहाँ क्यों लाया है? गुल को ये सवाल बुरी तरह तंग कर रहा था। इसका सवाल सुनकर शबनम के चेहरे का रंग उड़ गया। नज़र चुराते वो चेहरा मोड़ गई थी, जबकि गुल बेबसी से एक बार फिर से रोना शुरू हो गई थी। तभी दरवाज़ा खुला और 2 हट्टी-कट्टी औरतें अंदर दाखिल हुई थी। आते ही शबनम की रस्सियाँ खोलने लगी। गुल खौफ से इनकी हरकत का जायज़ा लेने लगी, जो बेदर्दी से शबनम का रस्सियों में जकड़ा वजूद आज़ाद करवा रही थी, जबकि शबनम घटी-घटी से चिल्ला रही थी, चल तुझे खान साहब याद कर रहे हैं। इनमें से एक ने गुल और शबनम के सर पर धमाका किया। नहीं, नहीं शबनम जी का खुदा का वास्ता शबनम जी को छोड़ दो। गुल बुरी तरह से रोती हुई टाँगें चलाने लगी, क्योंकि खान के बुलावे का मतलब वो अच्छे से समझ गई थी, जबकि शबनम आने वाले हालात का सुनकर ही सुन्न हो गई थी। जब इन दोनों ने इसे घसीटते हुए अंदर ले जाना चाहा तो वे जैसे होश में। गुल गुल खुदा का वास्ता मुझे बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। वो दोनों की गिरफ्त में बुरी तरह से मचली थी। दर्दनाक अंदाज में चीख रही थी। वो इसे जानवरों की तरह घसीटा जा रहा था।
जा रही थी, गुल भी चीख-चीख कर इन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। शबनम की हालत मंडी में खड़े इस जानवर के जैसे जिसे इसके महबूब मालिक से जुदा किया जा रहा है, मगर वो इसे ले जा चुकी थी। भूख सर में उठने वाली टीसे खौफ का गलबा खुद पर हावी होने के बायस गुल एक बार फिर से होशो-हवास से बेगाना हो चुकी थी। अगली सुबह शबनम को वापस कमरे में छोड़ दिया गया। इसकी हालत तार-तार लिबास से चीख-चीख कर इसके लुट जाने की गवाही दे रही थी। वो जब से वापस आई थी एक मरी नुक्ता पर घूरते जा रही थी। गुल का दिल खून के आंसू रो रहा था। बिना कुछ पूछे ही सब कुछ जान गई थी। इसे यूँ लग रहा था जैसे हर पल आरे से इसके कलेजे को चीरा जा रहा हो। शबनम की खामोशी और हालत इसे चीख-चीख कर रोने पर मजबूर कर रही थी, मगर वो इस वक्त इतनी कमज़ोर पड़ चुकी थी कि रो भी नहीं सकती थी। वो जानती थी कि वो भी जल्दी खान के नाम की काला मुँह पर लगवाने के लिए मजबूर कर दी जाएगी। भूखा-प्यासा इन दोनों को 2 दिन हो गए थे। हर पल मौत के करीब लगता था। इन 2 दिनों में करवट भी नहीं बदली थी। वजूद अब जैसे तख्ते की बाँधित हो गया था। होंठों पर पेपड़ी जम गई थी। ज़बान तालों का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी और आँखें मुकम्मल खुलने की सकत खो चुकी थी। अज़ियत की इंतहा थी। माहिर को इससे दूर हुए आज 5वां दिन चढ़ आया था। कल माहिर जी ने घर को लौट आना था। क्या मुझे ना पाकर उन्होंने मुझे ढूँढा होगा? आंसू आँखों से निकल कर इसकी कनपटियों में जज़्ब हो रहे थे, लेकिन इन्हें मुझसे ज़्यादा शबनम जी की फ़िक्र होगी। इनकी माँग है और मोहब्बत भी। दिमाग में कुछ और दिन पहले चाहते हुए अपनी मंगनी की अंगूठी दिखाती शबनम का अक्सर रहा था। चेहरा मोड़ के उसने नीम मुर्दा सी शबनम को देखा। दिल पर एक बोझ सा गिरा था। माहिर का नाम पुकारते हुए फूट कर रोने लगी थी शबनम को, जैसे किसी ने गहरी नींद से झंझोड़ दिया था। यहाँ कोई करंट का झटका जो इसके मुर्दा वजूद में बिजली दौड़ा गया था। देखते देखते इसके खुश्क वीरान आंखों में पानी का समुद्र उतरने लगा। वो इतनी शिद्दत और इतनी तरफ से रोई कि गुल को लगा वो इस सोग में ही मर जाएगी। हमारी ओज़ी की क्या हालत है? कितनी सांसें ले पाएगी? मजीद खान ने अपने पैरों की मालिश करते रशीद से पूछा। साहब बहुत कमज़ोर हो गई है छोकरी, ज़्यादा भूख ना सह पाई, ज़्यादा उम्मीद नहीं है हमारे को। रशीद ने तरस खाने वाले अंदाज में कहा। चलो आज रात तक तो जी लेगी ना, आज भेज देना इसको हमारे पास। खान पुरसकून सा तकिए के साथ टेक लगाता हुआ बोला। जो हुक्म साहब। रशीद ने फ़ौरन सर झुकाया। वैसे खान साहब जान की मान पाऊँ तो एक बात पूछूं? कदरे तौक़ुफ़ के साथ रशीद ने डरते हुए पूछा। हाँ पूछो। खान का मूड आज काफ़ी खुशगवार था। खान साहब आपको तो ओज़ी चाहिए थी ना, फिर ये दूसरी छोकरी क्यों? और ओज़ी को इतनी छूट किस लिए? वो डरते हुए आखिरकार पूछ बैठा। खान ने गहरी सांस ली। तू जानता है ना, इसकी माँ मरते मरते भी हमारे मुँह पर तमाचा मार गई थी। मुझसे बचने के लिए इसने बिना कुछ सोचे समझे खुद को एक लम्हे के अंदर मौत के घाट उतार दिया। यहाँ खून गिरा था इसका। वो गज़बनाक अपने चेहरे की तरफ इशारा कर रहा था। इसका गज़ब देखकर रशीद का खून सूख रहा था। मैं इसे तड़पा-तड़पा कर मारना चाहता हूँ, पर इसने खुद के लिए जल्द मौत चुन ली। लेकिन ये उसी इसको मैं एक जगह रख कर तड़पाऊँगा, फिर भूख की शिद्दत से तड़पेगी और फिर आखिर में सबसे कीमती शय इसे छीन लूँगा। इसके बाद वो मरेगी या जिए, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस के झुर्रियों भरे चेहरे पर सफ़ाकत का समुंदर ठाटे मार रहा था। रशीद दिल ही दिल में इसे गालियाँ देकर रह गया। नीम बेहोशी में इसे एहसास हुआ जैसे कोई बेदर्दी से इसके वजूद को मार रहा हो। भारी होती पलकों का बोझ उठाया इसने बमुश्किल आँखें खोली। वह खुद पर झुकी इन 2 औरतों को देखकर इसकी तमाम एहसासात एकदम बेदार हो गए थे। वो इसकी रस्सियाँ खो रही थी। गुल के मुँह से सिसकियाँ निकलने लगी। इसने गर्दन मोड़कर शबनम की तरफ देखा, जो बेइंतहा खौफ से इसकी जानब देख रही थी। गुल समझ गई थी इसके साथ क्या होने वाला है। अब यकीनन इसके लौटने का वक़्त आ गया। एक सर्द लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दुरागी। मुझे ले जाओ, इसको छोड़ दो। इसे शबनम की दर्द में डूबी आवाज़ सुनाई दी थी। कलेजा फटने को आ गया था। इन औरतों ने चौंक कर शबनम को देखा। तब होश हो गया। तुझे खान साहब को ओज़ी चाहिए, तू नहीं। इनमें से एक करख्त आवाज़ में बोली थी। गुल की दबी-दबी सिसकियाँ अब बुलंद होने लगी थी। नहीं, खुदा का वास्ता मुझे तो बर्बाद कर ही चुके हो वो खान। गुल को मत करो प्लीज़। वो बुला-बुला कर रोने लगी थी। चुप कर जाओ, ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ। हम खान साहब के हुक्म के पाबंद हैं, तेरे नहीं। इनमें से एक ने झटके से गुल को बैठाते हुए शबनम को झटका था। गुल को लगा इसके वजूद की सारी हड्डियाँ टूट गई हों। नहीं, इसे छोड़ दो। शबनम बिलखी थी। वो अब गुल को खींचते हुए ले जा रही थी। वो भी खामोशी से घसीटती जा रही थी। कोई मज़ाहमत नहीं की थी। इसके अंदाज में, हरकत में एक बेजान सी मूरत दिखाई दे रही थी। वो इस कमरे में ले जा चुके थे। बादल गरजने लगे थे। बिजली की चमक ने पल के लिए इस अंधेरी कोठरी में उजाला सा कर दिया था। इस पर शबनम ने खुलूस दिल से दुआ की थी कि ज़िंदगी के इन लम्हात में काश कोई रोशनी बनकर अंधेरी रात को इस उजाले से भर दे। हाँ, खुशामदीद ओज़ी। वो औरतें इसे खान के कमरे में पट के जा चुकी थी। तभी खान चाहता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। गुल हाथों के सहारे पीछे को खिसकी थी। कहीं भी जा चंदा, तेरी हर राह मुझ पर ही आकर रुकती है। जैसे तेरी माँ आखिरी लम्हों में तेरे बाप के बजाय हमारी बाजों में मरी थी। वो ख़बासत से कहता जा रहा था। गुल को लगा इसे सुनने में गलती हुई है। लफ्ज़ मरी पर वो सन्नाटे में चली गई थी। क्या किया तूने मेरे माँ बाप के साथ? कपकपाते लहजे में वो इतना ही पूछ पाई थी। मार दिया और क्या करना था? हाथ झाड़ते हुए वो यूँ बोला जैसे किसी बेमोल चीज़ की बात कर रहा। गुल को लगा आसमान पूरा
इस पर पड़ा हो, रेत हाथों में दबाए इसने पूरी गौर से मुठियाँ भींची थी। इसके माँ बाप इससे हमेशा के लिए जुदा हो गए थे, ये ख्याल इस बेमुरत कर गया था। खान अपने महसूस कहके के साथ इसे के सामने घुटनों के बल बैठा। कैसा लगा सुन के? वो अब गुल के जख्मों पर नमक छिड़क रहा था। गुल ने जब्त की इंतहा को छूकर अपनी मुठ्ठियों में बड़ी रेत खान के चेहरे पर उछाली। खान एकदम बिलबिलाकर पीछे हटा। गुल पूरी ताकत लगाकर उठी और अपने बचाव के लिए कुछ तलाश करना चाहा, साथ ही साथ वो पूरी शिद्दत से रोती हुई खान पर बढ़ के रेत उछाल रही थी। "तू रुक ज़रा।" गज़बनाक सा खान पागल कुत्ते की मानत बावला तो इसकी तरफ बढ़ा था। गुल को काबू करना चाहा, तभी गुल की दर्दनाक चीख के साथ एक लम्हे के लिए हर सू सन्नाटा छा गया। खान दर्द की शिद्दत से दोहरा होता घुटनों के बल गिरा। गुल भी अपने घुटनों को हाथों से दबोचे लहू रंग आंखें लिए पलटी। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। मंजर बार-बार धुंधला रहा था। इसके हाथ खून से रंगे जा चुके थे। कंधा भीगता हुआ महसूस हुआ था। दर्द की एक शदीद लहर दौड़ी थी, मगर ये दर्द भी मीठा सा लगने लगा था। अपने मनपसंद शख्स को देख लेने के बाद इसकी कड़वाहट, इसकी अज़ियत कहीं उड़न-छू हो गई थी। गुल माहिर रिवॉल्वर नीचे फेंकता दीवाना वार इसकी तरफ बढ़ा था। गुल ने भी आगे बढ़ना चाहा, मगर कदमों ने साथ देने से इनकार कर दिया। इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती, माहिर की मजबूत गिरफ्त ने इसके गिर्द हिसार बांधा था। अपना वजूद एकदम हल्का-फुल्का महसूस होने लगा था। खान दर्द की शिद्दत से ज़मीन पर गिरा चीख रहा था। इसकी हालत बावले कुत्ते के जैसी थी। पुलिस के सायरन की आवाज़ गूंजने लगी थी। पल भर में वहाँ पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी थी। हारून गिरजता हुआ सब को ऑर्डर दे रहा था, "गुल, गुल, तुम ठीक हो? जवाब दो।" उसका चेहरा थपथपाता से पुकार रहा था। इसके कंधे से सर टकाए गुल इसकी तरफ महसूस कर रही थी। "गुल, जवाब दो प्लीज़, तुम ठीक हो ना? मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें गोली लगी, बहुत दर्द हो रहा है ना?" वो लहजे में तरफ और दर्द लिए बोल रहा था। "पानी।" गुल की घटी-घटी आवाज़ आई थी। "पानी चाहिए।" इसको जल्दी से दीवार के सहारे बैठाता हुआ एक एक जगह छानने लगा, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। बाहर बादल ज़ोर से गरजे थे। माही ने ज़ोर से झोंका था। इसी लम्हे ख्याल आने पर इसके चेहरे पर चमक दौड़ गई। वो वापस से गर्दन टिकाए बैठी गुल की तरफ भागा था और इसे लिए बाहर की तरफ निकल गया। गुल का सर पीछे को रख रहा था। मदम सांसें चलती हुई जीने की पूरी कोशिश कर रही थी। छपाक-छपाक की आवाज़ों के साथ माहिर के कदम अंडरग्राउंड एरिया से बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। बाहर आते ही वो बारिश की तेज़ बौछार में पूरी तरह से भीगने लगा। गुल को नीचे बिठाकर इसने घुटनों का सहारा दिया, साथ ही वो हाथों का प्याला बनाकर बारिश का पानी जमा करके इसके होंठों तक पहुँचा रहा था। गुल की आँखों में इस वक़्त खुशी के आँसू थे। बेशक ये इसकी ज़िंदगी के लम्हों में से सबसे हसीन लम्हात थे। शुक्रिया। सैर होने पर वो इतना ही बोल पाई थी, "चलो अब घर चलें।" माहिर ने उठना चाहा, मगर गुल ने इसके घुटने पर हाथ रख इसे रोक लिया था। "शबनम जी, हमारे नकाहत के से बात करने में दुश्वारी पेश आ रही थी, ना मतलब इसका।" अपनी जेब से रुमाल निकालते हुए तासिफ से गुस्से के मिले-जुले तासुरात लिए कह रहा था। "लेकिन क्यों हैरान हुई थी तुम? ज़्यादा सवाल मत करो। हारून इसे लेकर आएगा। तुम्हारा ज़िंदा रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।" इसके कंधे पर रुमाल बाँधते हुए वो ठहरे हुए लहजे में बोल रहा था, "मगर वो आपकी माँग है। आप तो उससे मोहब्बत करते हैं ना?" गुल चाहते हुए भी अपनी ज़ुबान पे आए सवाल को ना रोक पाई। हादसा कब पेश आया? माहिर के काम करते हाथ रुके और मारे हाथ के मुँह खुल गया था। "आप झूठ मत बोले। शबनम जी ने मुझे वो अंगूठी दिखाई थी जो आपने इन्हें अपने नाम के करने के लिए पहनाई थी।" और स्टॉप इट गुल, वो गुस्से से झंझलाए। तने तने हुए नक्काश देखकर गुल डर कर खामोश होगी। कोई भी लड़की अपने हाथों में पहनी हुई अंगूठी तुम्हें दिखाकर कहेगी कि ये माहिर ने इसे पहनाई है तो मान जाओगी। वो तासिफ से उसे देख रहा था। गुल शर्मिंदगी से सर झुका के थी। इंसान को इस कदर बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में जीने के लिए कुछ तो अकल का साथ हो, वरना तुम तो गई। इसने झुककर गुल के माथे पर उँगली मारी। गुल का दिल चाहा वो वहीं ज़मीन में धँस जाए। तब मैं सोच रहा हूँ कि कोई तो हो जो तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की का साथ दे, वरना तुम तो मारी जाओगी। इसके लहजे की मायने खींची पर गुल ने चौंक कर इसे देखा था। दिल ज़ोर से धड़कने लगा था। वो जल्दी से नज़र झुका के मनहूस इस आदमी अब तो टर्की हो रहा है। छी छी, शर्म नहीं आती? माहिर के दिमाग ने इसे डपटा था, जबकि दिल में बेईमानी पर रुखसार रहा था। इसने दिमाग से इत्तेफाक किया, "चलो अब चलते हैं यहाँ से।" गुल ने इससे कुछ कहना चाहा, मगर वो एक ही सेकंड में इसे वहाँ से लिए निकल गया था। वक्त आगे बढ़ने की बजाय पीछे को सरकने लगा था। शाह पर हाथों में घुमाते हुए वो गुनगुनाता हुआ घर में दाखिल हुआ। सामने घर की बत्तर हाथ देख इसका झटका लगा था। इसे भागकर वो किचन में गया। वहाँ यूँ लग रहा था जैसे यहाँ पर कुछ देर पहले दंगल हुआ हो। फर्श पर खून पड़ा था, चीज़ें बिखरी पड़ी थी, स्टूल ज़मीन पर बोझ था। इन सब से होते हुए इसकी नज़र कपड़े के एक टुकड़े पर अटक गई थी। चूँकि इसने वो उठाया तो एक लम्हे के लिए इसे लगा कि इसका नज़र का धोखा। उसने फिर से आँखें मल-मल कर देखा, ये तो शबनम के सूट का कपड़ा था। आफ़ताब को लगा आसमान इस पर टूट पड़ा है। वो पागलों की तरह शबनम को ढूँढने लगा। घर का एक-एक कोना चेक कर लिया था, शबनम कहीं नहीं मिली। ओह नहीं!
बाल हाथों से नोचते हुए चीखने लगा। आँसू वो आँखों से लगातार जारी थे, पूरा वजूद बुरी तरह काँप रहा था, टाँगें साथ देने से इनकारी थी। बहन की मोहब्बत और पैसों की लालच में वो गुल की ज़िंदगी बर्बाद करने को तैयार हो गया था। तभी खान से 50,000 के बदले गुल का सौदा कर आया था। मगर ये क्या, इस चक्कर में वो ये भी भूल गया कि खान सूद के तौर पर इसकी बहन को भी तो लेकर जा सकता है, बल्कि वो तो लेकर जा चुका है। मुँह पे हाथ रख के इसने खुद को कंपोज़ किया था और फिर अपने फ़ोन की तरफ बढ़ा। इसकी काँपती उँगलियाँ खान का नंबर डायल कर रही थी। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव कर ली गई थी। आफ़ताब, मानना पड़ेगा, तुम्हारी बहन भी मस्त माल है, इसकी कीमत भी चाहिए क्या? खान की बात सुनकर इसे अपनी टाँगों से जान निकलती हुई महसूस हुई थी। कदमों तले ज़मीन खिसक गई थी, घुटनों के बल ज़मीन पर आ गिरा था। नहीं, नहीं, नहीं खान, इसको छोड़ दो। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खामोश गुस्से की शिद्दत से वो इतना ही अटका हुआ मगर चीख उठा था। है। हाँ, हाँ, खान को गुस्सा दिला रहे हो, मत बोलो, तुम्हारी बहन हमारे कब्ज़े में है। खान की एक रख्त आवाज़ गूंजी थी। इस कदर शदीद ठंड में भी आफ़ताब को पसीने आने लगे थे। खुदा का वास्ता, खुदा ने खान, इसे छोड़ दो, वो मेरी बहन है। तुम चाहो तो जो पैसे मैंने तुमसे तुम्हारी ओसी के बदले में माँगे हैं वो भी लौटा दूँगा। खुदा का वास्ता इसे छोड़ दो। वो अब बर्दाश्त ना कर पा रहा था, दिल फटने के करीब था। जवाबन खान बेरहमी से हँसा था। इस गम-ओ-खौफ की कैफियत में आफ़ताब पर गुस्सा गालिब आने लगा था। वो कहाँ आदी था किसी के सामने भीख माँगने का। तभी जब वो बोला तो उसकी आवाज़ में धमकी थी। तुझे क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता? मैं अपनी बहन को ज़रूर बचाऊँगा, अभी पुलिस के साथ तेरे घर पहुँचूँगा, तुझे अपने हाथों से मारूँगा। इसकी आवाज़ गुस्से से काँप रही थी। हम गाँव में होंगे तो पकड़ेगा ना? खान की ससराती हुई आवाज़ पर आफ़ताब को उम्मीद की आखिरी किरण भी ख़त्म होती दिखाई दी थी। दूसरी तरफ से फ़ोन काट दिया गया था। आफ़ताब चीखता रह गया, मगर इसकी सुनने वाला कोई नहीं था। इसका वजूद बुरी तरह काँप रहा था, दिल दौड़ रहा था, पागल होता जा रहा था। कोई राह नापाक दिखाई दे रही थी। जब वो खुद पर पड़ी तब अपने गुनाह याद आने लगे। आसमान की तरफ चेहरा किए वो रोता हुआ माफ़िया माँगने लगा था। सजदे में गिर कर इसने खुदा से बहुत माफ़िया माँगी, अपनी बहन की सलामती की, इसकी ज़िंदगी की। मगर अफ़सोस, वो इस मामले में भी अभी भी खुद कर्ज़ बन रहा था। गुल के वास्ते इसके हाथ दुआ के लिए ना उठे थे। इस वक़्त इसे सिर्फ़ अपनी बहन की फ़िक्र थी। होश आने पर वो बस इसका हाल सोचने लगा। दिमाग लड़ कर सिर्फ़ एक राह दिखा रहा था, जिसमें से अपना आप हर तरह से पछतावा महसूस हुआ, मगर इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इसने फ़िलहाल अपना आप हालात के हवाले कर दिया। काँपते हाथों से इसने हारून का नंबर डायल किया और सूरत-ए-हाल गोल-मोल करके बता दी। इस वक़्त हारून के अलावा और कोई भी इसकी मदद नहीं कर सकता था। अगर माहिर को बताता तो इसके दुबई से यहाँ आने पर भी काफ़ी देर हो जाती, और हकीकत पता चलने पर सबसे पहले माहिर ने इसी का कत्ल करना था। हारून इसकी तवक्को के मुताबिक 10 मिनट में वहाँ पहुँच चुका था, और यहाँ पहुँचने से पहले वो माहिर को इत्तला कर चुका था। और दूसरी तरफ से माहिर ज़ंज़लों की जद में आ चुका था कि कई पल तो इसे यकीन करने में लग गए थे। साथ रोती-बिलखती माँ और बहन बैठी थी। वो इस वक़्त मौत वाले घर में था, मगर जो खबर हारून ने से दी थी वो तो गया। इसकी मौत का समा थी। आखिरी इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत हर पल होने के साथ इसने दूर जाती हुई महसूस हुई थी। वो तो इतना बेबस था कि इसे देख भी नहीं सकता था। कच्चा से बचा पाता अपने ज़राए और कुछ तल्लुकात जमा करके अगली सुबह वो पाकिस्तान पहुँच चुका था। तब तक हारून और आफ़ताब उसे गुल के गाँव का चक्कर लगा कर आ चुके थे, और वहाँ सिवाय नाकामी के इन्हें कुछ भी नहीं मिला था। मुझे पूरी उम्मीद है वो इसी शहर में छुपे हैं। ये हारून की आवाज़ थी। मगर कहाँ? हारून, मेरी मदद कर, वो बर्बाद कर देगा इस मासूम को, कुछ कर प्लीज़। माहिर की दर्द में डूबी आवाज़ सुनकर हारून का दिल दुःख गया था। माहिर, मेरी जान बात सुन, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमें पहले खुद को मजबूत करना होता है, हिम्मत करनी होती है। अगर हम हिम्मत छोड़ देंगे तो क्या हक मुकाबला कर पाएंगे? अपनी हालत देखकर तेरी टांगें तेरा वजन सह नहीं पा रही। इसने माहिर की टांगों की तरफ इशारा किया जो हौले-हौले से कांप रही थी। मेरी जान इन लोगों के कब्जे में है, इस खाली बदन का क्या करूं? माहिर के टूटे हुए अल्फाज पर लहजे पर हारून अपनी आँखों की नमी छुपाता इसे गले लगाकर तेज़ी से तसल्ली देने लगा। इसका असर भी हुआ था। अगले 10 मिनट में माहिर सँभल चुका था। तने हुए नकोश और आँखें से झलकती संजीदगी एकदम मज़बूत जाल लिए वो पहले वाला माहिर था। इनका मिशन स्टार्ट हो चुका था। सरदार कपड़ों में पुलिस के आदमी हर जगह फैल चुके थे। बख्शू भी इनके साथ ही था। ये हारून का कहना था कि इसे साथ ज़रूर लाया जाए, क्योंकि इन लोगों को में वाहिद वो शख्स था जो खान को देखकर पहचान सकता था। जान के आदमी भी पूरी मदद कर रहे थे। माहिर ने शहर की हर जगह एक-एक कोना छान मारा था, मगर शातिर खान का पता नहीं चल रहा था। वो दिन भी गुज़र गया। आज गुल को और शबनम को गायब हुए दूसरी रात भी गुज़र गई थी। माहिर को हर पल गुज़रता लगता कि वो टूट जाएगा, मगर वो हर पल सिर्फ़ गुल को सोचकर खुद को सँभाल लेता। गुल का ख़्याल ही था जो इसको समेट लेता था। जब वो इसको खोने के डर से बिखरता तो इसकी मियत इसकी बातें इसको समेट लेती थी। ये अगले दिन शाम के 5 बज रहे थे। वो आफ़ताब के पास खड़ा हर पल डूबते सूरज को देख रहा था। आज का पूरा दिन भी नाकामी से साथ ख़त्म होने को था। आफ़ताब का मुँह ज़मीन की तरफ था, और माहिर अपने दिमाग में उठते सवाल को मुसलसल समझने की कोशिश कर रहा था। तभी हारून ने फ़ोन लिए इसके पास आया। इसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। काफ़ी देर वो माहिर को बुलाता रहा, मगर वो किसी गहरी सोच में गुम था। तभी वो आफ़ताब से फ़ोन लेकर साइड पर चला गया। इसके जाने के बाद आफ़ताब का खून एक
ख़्याल आने पर सूख गया था। इसने अपनी कॉल लिस्ट में से खान का नंबर डिलीट किया ही नहीं था, जिस नंबर से इसे परसों रात कॉल आई थी। अगर हारून की तेज़ निगाह में वो नंबर आ जाता तो इसका बचना नामुमकिन था। खुद को बचाने के लिए इसने वो बहुत ही घिनौना चाल चली थी। पहले पल इसका इरादा सब सच बताकर अपने गुनाह का एतराफ़ करने का था, मगर इसके दिमाग में एक आइडिया आया और इसने बड़ी हिम्मत करके अपना सर दीवार में मार कर खुद को ज़ख्मी किया और हारून के आने पर ये ड्रामा किया कि इसकी नज़रों के सामने गुल और शबनम को उठाकर ले गया वो खान और इसे बेरहमी से पीटा है। ये सोचकर वो तेज़ी से हारून की तरफ भागा ताकि बहाने से इसका फ़ोन लेकर वो नंबर डिलीट कर दे, मगर माहिर ने इसके कंधे पर हाथ रख इसे रोक लिया था। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि जो लोग गुल और शबनम को उठाकर ले गए हैं वो खान और इसके आदमी थे, और खान तुमको कैसे जानता होगा भला? माहिर के सवाल पर आफ्ताब के चेहरे का रंग फ़क हो गया था, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो इतना बौखलाया हुआ था, कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा। माहिर ने चांचुई नज़र से मुँह से सफ़ेद पड़ते आफ्ताब को देखा। वो 2-3 खुद 2-3 वो खुद इस हालत में था, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी थी, होश आने लगा कर अब इसने दिमाग लड़ाना शुरू किया था। वो मैं मारे घबराहट के इसके मुँह से कुछ निकल भी नहीं रहा था, मगर माहिर का ज़ोरदार पंच पड़ते ही वो ज़मीन पर गिर गया था। माहिर ने एक झटके से इसके बाल दबोचे। आफ्ताब के मुँह से एक कराह निकली थी, सच-सच बता, रात तक क्या हुआ था? नहीं तो यहीं पर तेरा बेजा निकाल दूँगा, कुत्तों के आगे फेंक दूँगा। माहिर की बात सुनकर आफ्ताब के पसीने छूटने लगे थे। इससे पहले वो कुछ बोलता हारून भागता हुआ इसकी तरफ आया था। नंबर किसका है? जिसकी कॉल तुम्हें किडनैपिंग की अननोन नंबर से आई थी इस रात। हारून को भी माहिर की तरह आफ्ताब पर शक था। आफ्ताब ने बड़ी कोशिश की इस बार भी कोई चाल चल ले अपने मफाद के लिए। वो भूल गया था कि इसका एतराफ़ इन 2 लड़कियों की जान और इज़्ज़त बचा सकता था। बाबा, बिलाखिर इसने सच बता दिया कि ये इसकी चाल थी, इसका प्लान था, मगर वो शबनम को भी साथ ले गए। और मज़ीद इसने भी बताया कि गुल को खान के पास भेजने में शबनम ने भी इसका साथ दिया था। माहिर का दिमाग सुन्न हो गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सामने बैठे इस घटिया इंसान का इससे खून का रिश्ता है। किस कदर गलीज़ इंसान था वो गुस्से से पागल होता। आफ्ताब को जान से मारने का सोच कर इसकी तरफ लपका, मगर हारून बीच में आ गया था। माहिर, मेरी बात सुन, ये वक्त दिल से नहीं दिमाग से सोचने का है। इस जाहिल गवार खान को नहीं पता कि ये नंबर इसकी मौत की वजह बन सकता है। हम इस नंबर के ज़रिए बहुत आसानी से इसकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। अभी पता चल जाएगा ये नंबर किसके नाम पर है और खान का छुपा है। यह हारून के अल्फाज थे, ऑक्सीजन का झोंका। माहिर को लगा वो जी उठा है। बेहद कड़ी मेहनत के बाद वो खान का पता लगाने में कामयाब हो चुके थे। वो अपने आदमियों के साथ अंडरग्राउंड हो चुका था। पुलिस की बारी नफरी के साथ जो ही उन्होंने एंट्री मारी, माहिर को गुल की चीखों की आवाज़ सुनाई दी। हारून के साथ ये रिवॉल्वर छीनता वो दीवाना वार अंदर की तरफ भागा था। वो इसे नज़र आ गई थी, रोते हुए भर कर खान के मुंह पर खाक डालती। माहिर के अंदर तक जैसे ठंडक उतर गई थी, मगर निगाह भटकती भटकती जो इस मकरूह शख्स की तरफ गई, गुस्से से पागल होते ट्रैकर पर इसका दबाव बढ़ गया था। गोली खान के आर पार हो गई थी, गुल के शाने को छूती हुई गुजर गई थी। तभी खान की धार के साथ गुल की चीख भी हर सू बुलंद हुई थी। वो टूटकर बिखरने ही लगी थी जब माहिर ने आगे बढ़ के उसे समेट लिया था। आज घर में हर तरफ जोर शोर से तैयारी चल रही थी। पकवान तैयार हो रहे थे, घर की सजावट जारी थी। शबनम को आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आना था, तो इसी खुशी में अहमद साहब और अली साहब ने शानदार दावत का एहतमाम किया था। आज बहुत अरसे बाद इनके घर खुशियाँ लौटी थी, तो कोई खुशियों से फिर से जीना चाहता था। काम करते माहिर के दिल में किसी की याद ने दस्तक दी थी। वो सबसे नज़र बचाकर एक कोने में चला गया और फ़ोन निकाल कर कॉल करनी चाहिए कि किसी ने पीछे से आकर इसका कान पकड़ लिया। ओए मम्मी! वो अपना कान छुड़ाने की कोशिश करने लगा। आमना बेगम ने मुस्कुराते हुए इसका दूसरा कान भी पकड़ लिया था। किसको फ़ोन करने के लिए चुप रहे हो? इनके लहजे से शरारत झलक रही थी। मम्मा, कुछ तो पर्सनल रहने दिया करे। माहिर झिंझलाया था। अच्छा, तो मतलब मेरी बहू को तंग करने की कोशिश कर रहे हो? उन्होंने जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की, मैं सब जानता हूँ। वो मुँह बनाकर हौले से बोला था। अच्छा सुनो ना माहिर, तुम मुझे शादी के बाद भूल तो नहीं जाओगे? हर माँ की तरह इनको भी एक ही खतरा लाक था। इस हादसे के बाद तो सबके दिल ही मोम हो गए थे और वो बाखुशी गुल को अपनी बहू बनाने को राज़ी हो गए थे। कौन सी कोई सांस लेना भी भूल सकता है माँ? माहिर ने मोहब्बत से कहते हुए माँ की पेशानी चूमी। इसकी मोहब्बत पर वो निहाल होती दुआएं देती वहाँ से चली गई। इसने मुस्कुराते गुल का नंबर मिलाना चाहा, मगर वहाँ हिना बस बत्तीसी निकालते हुए हाजिर हुई थी। माहिर ने इसे आओ देखा ना आओ देखा सीधा अपने कमरे की तरफ सपीट पकड़ लिया। अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर से हिना मानी खैसी जमले उछालती से छेड़ते हुए दरवाज़ा पीट रही थी। गुल जिंदाबाद लड़कियों के नारे ज़ोर शोर से जारी थे, जिसने पूरे गांव को सर पर उठा रखा था। और चीख कर गुल के हौसला अफजाई कर रहे थे। घर में बैठी इनकी माएँ जी भर भर के इन्हें कोस रही थी। काफ़ी इस अरसे के इस गांव की औरतें और बाकी लोगों ने खुलकर से आज़ादी की सांस ली थी। अब ना इसका तनफ़्फ़ुस बुरी तरह बिगड़ा हुआ था, चेहरा सूख हो रहा था, पैर मिट्टी से भर चुके थे। वो इस वक्त गोया अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने वाली थी। रस्सी गोल-गोल घूम रही थी। इसकी
स्टेप्स जारी थे, बड़ी महारत के साथ वो बिना रुके खेल रही थी। आखिरी जंप के साथ रस्सी रुकी और वो नीचे बैठती चली गई, सांस धमकी की तरह चल रही थी। इसकी साथी लड़कियां चीख कर इसकी कामयाबी सेलिब्रेट कर रही थी। पानी तो अपने सूखे होंठ सूखे हुए हवा पर जुबान फेरते उसने आवाज़ लगाई थी, हाँ पी लाते हैं। सब इधर उधर पानी लेने के लिए बिखर गई। थोड़ी देर बाद किसी ने इसके सामने पानी की बोतल की, जिसे इसने फौरन झपटी और घटाकर सूखे हल्क में उतारने लगी। फिर बोतल साइड पर उछाल दी, मगर जिसने पानी की बोतल दी थी इसकी मौजूदगी अब भी महसूस हो रही थी। फिर लड़कियों की दबी दबी हंसी पर इसने सर उठाकर देखा। माहिर को खड़ा देखकर वो उछल कर पीछे हुई थी। माहिर जी, इसकी हैरत ज़दा मगर खुशी से भरपूर आवाज़ गूंजी, नहीं इसका भूत, इशारे से कहते हुए इसने गुल का हाथ थाम लिया था। माहिर जी गुल सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ मनमनाई थी। इतने सारे लोगों के सामने इससे माहिर से हरगिज़ ऐसी उम्मीद नहीं थी। वहाँ खड़ी लड़कियां शौकी से गुल को छेड़ती शोर मचाने लगी थी। गुल ने मारे शर्म के माहिर के सर झुका लिया था। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, जब तक मेरे साथ थी तब तक तो ज़बान नहीं खोलती थी, अब देखो बंदरों की तरह उछल रही हो। चलते हुए ट्यूबवेल के पास गुल को बिठाते हुए हंसा था। गुल का चेहरा मज़ीद सुर्ख हो गया था, मतलब वो इसे खेलते हुए भी देख चुका था। ओह तुम इतनी शर्माती भी है, वो इसे मज़ीद छेड़ रहा था। गुल अब काटते से हुए अपने पैर धोने लगी। इसके अंदाज पर माहिर हंसता चला गया। अच्छा तुम ये बताओ, जो मैंने तुम्हें फ़ोन दिया था वो कहाँ है? वो अब लहजे में खप के लिए बोल रहा था। गुल बौखला गई। वो तो घर पर पड़ा है, घर पर अंडे दे रहा है। क्या एक दो अंडे मुझे भी दे दो? वो मज़ीद नाराज़ हुआ। गुल ने नहायत हैरत से देखा था। माहिर जी, आपको अंडे चाहिए तो हमारी मुर्गी देसी अंडे देती है, आप ले जाएं। अपने ख़ास से इसने अपने अंदाज में खासी समझदारी से दिया दरिया दिली का मुजाहरा किया। हाँ ले आओ और लाकर मेरे सर पर फोड़ दो। वो झंझलाकर उठा और नाराज़ होता वहाँ से जाने लगा। माहिर जी, नाराज़ ना हो, अब आपकी कॉल ज़रूर उठाऊंगी, अल्लाह का वादा। उसके पीछे भागती हुई वादा करने लगी। हाँ बस मैं दुआ करूँगा, वरना लगता तो यही है कि तुम्हारे फ़ोन उठाने तक मुझे अल्लाह उठा लेगा। वो भी नाराज़ ही था। गुलदीप पर हाथ रख कर रुकी थी। माहिर जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी उम्र भी आपको लग जाए, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊँगी, मैं खुद को मार दूँगी। सुना आपने? माहिर जी वो ज़ोर-ज़ोर से इसके पुश्त पर चलाने लगी थी। माहिर ने इसे मज़ीद तंग करने के लिए कानों में उँगलियाँ ठूँस ली, मगर इस हद तक इसकी बातें फिर भी सुनाई दे रही थी। कार में बैठ के इसने दरवाज़ा बंद करके सामने देखा। वो आँखों में मोटे-मोटे आँसू लिए इसे देख रही थी। आज शाम ज़रूर आना है तुमने, बख्शो चचा को बता दिया है मैंने। वो सर शीशे से बाहर निकालता ऊँची आवाज़ में इसे कहने लगा था, मैं नहीं आऊँगी। वो मुँह फुलाकर नाराज़गी से बोली, देखता हूँ फिर कैसे नहीं आती। वो धमकी देता गाड़ी उड़ा ले गया था। गुल वहीं से घूरती रह गई थी। वो इस वक्त बद पर साकिन नज़रों बैठी साकिन नज़र से सामने को देख रही थी। ज़र्द रंगत आँखों के नीचे गहरे हल्के और पीले होंठ, ये वो शबनम तो थी नहीं जो चंद माह पहले दिखती थी। ज़मीन को दबते हुए इसकी आंखों के सामने कुछ बुरी यादें घूम रही थी, मगर किसी की चौड़ी हथेली सामने आते ही इसकी सोचों का इर्तिकाज़ टूटा था। इसने चौंक कर सामने देखा। सामने उस्मान ने मुस्कुराते हुए उसे देखा था। घर चलें शबनम, वो उसे अपने महसूस नम लहजे में बोल रहा था। शबनम नम आंखों के साथ सर हिला दिया, अपने हाथ इसके मजबूत हाथ में दे दी। कुछ अर्से पहले शबनम ने हाथ हकारत के साथ इसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था, उस बिना पर कि वो गरीब था। इसके पास एक अच्छा घर और एक बैंक बैलेंस नहीं था, मगर जब वो बर्बाद हुई तो इसे इज्जत देने वही आया था। इसने शबनम को अपने निकाह में लेने का फैसला करके इसे मजीद शर्मिंदगी के समुंदर में धकेल दिया था। इसे डर था कि कहीं उस्मान से बदला लेने की कोशिश तो नहीं कर रहा, मगर उस्मान अपनी बेलौस मोहब्बतों से इसे जिता दिया कि मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत में नाजायज़ भी जायज़ होता है और पैसा और स्टेटस ही ज़िंदगी नहीं होते। तुम चल लो कि ना? वो अब भी मोहब्बत और परेशान से पूछ रहा था। शबनम ने सर हिलाकर धीरे से इसका बाजू थामा और इसके कंधे पर सर टिका दिया। उस्मान ने इसकी मोहब्बत के इतराफ़ को कबूल करते हुए गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर ली थी। इसे उम्मीद थी शबनम के साथ इसकी ज़िंदगी का सफ़र बेहतरीन गुजरेगा, क्योंकि शबनम में अब बहुत बदलाव आ चुका था जो इनकी ज़िंदगी को कामयाब बना सकता था। "ओज़ी मेरी सोनी दी, तू तो अब तक तैयार नहीं हुई?" बख्शो अब तक कोई 10वां चक्कर लगा चुका था कमरे में। मुँह फुलाए वहीं बैठी थी। आज शबनम के घर आने की खुशी में जो दावत रखी गई थी उसमें वो ख़ुसूसी इनवाइटेड थी, और साथ ही आज गुल और माहिर और शबनम और उस्मान की शादी की डेट भी फिक्स होनी थी। "चचा मैं नहीं जाऊँगी।" वो इसकी गोद में सर रखकर लेट गई थी। वो था तो गुल की फूफो का शौहर। इसका गुल से कोई खून का रिश्ता नहीं था, मगर महबूब बीवी के जाने के बाद यही एक निशानी इसके पास बची थी। वो इसे सँभाले रखना चाहता था। इतना प्यार गुल को अपने माँ-बाप ने नहीं दिया था, जितनी मोहब्बत इस अरसे में बख्शों ने इसे दे दी थी। माँ और बाप दोनों का प्यार गुल को इससे मिला था। "ना मेरी धी रानी, ऐसे नहीं करते, जल्दी से तैयार हो जाओ।" इसे बचकर था वहाँ से चला गया। मुँह बनाए माहिर के कॉल का इंतज़ार करने लगी। इसे पता था वो इसे ज़रूर मनाएगा। आखिरकार जानलेवा इंतज़ार के बाद इसकी कॉल आएगी। "क्या मसला है? अभी तक तुम पहुँची क्यों नहीं? बख्शो चचा कहाँ पर हैं?" हस्बे तवक्कुल माहिर शुरू हो चुका था। "मैं नहीं आऊँगी, आप पहले मुझे सॉरी बोलें।" उठते हुए बोली, "या अल्लाह, मैंने तुम्हें सॉरी लफ्ज़ क्या सिखा दिया? तुम तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई हो। अब आप सॉरी बोलो।" इसकी सुई अभी वहीं अटकी थी। "मैं नहीं बोलूँगा, तुम
نہ آؤ، میں ابھی جا کر مامی سے کہتا ہوں کہ شبنم کی بات مجھ سے پکی کرتے ہیں، اسے شادی کرنے کے بعد ایک ساتھ سوری بولوں گا۔ وہ جان لیوا دھمکی دے کر کال کاٹ گیا تھا۔ ماہر جی، نہیں نہیں، میں سوری، میں آ رہی ہوں۔ پیچھے سے چیختی رہ گئی، پھر تیز سے اسپرنگ کی طرح اچھلتی ہوئی تیار ہو کر کمرے سے نکل گئی۔ باہر کھڑا بخشو بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ لان میں گہما گہمی مچی ہوئی تھی، مہمان تقریباً سارے آ چکے تھے۔ حنا اپنا فراق سنبھالتی چہتی ہوئی یہاں وہاں پھر رہی تھی اور شبنم کو بھی زبردستی اپنے ساتھ لا رہی تھی۔ ہارون، عثمان اور ماہر ایک ٹیبل پر بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ آفتاب نے کھانے کے انتظام دیکھے تو عثمان کی نظر بھٹک بھٹک کر شبنم کی طرف جا رہی تھی، جبکہ ماہر کی نظریں مسلسل دروازے پر ٹکی تھی۔ ہارون ان دونوں کی بے چینی انجوائے کرتا انہیں چھیڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ماہر کو لگا جیسے موسم ایک دم خوشگوار سا ہو گیا ہے۔ اس کے پاس سے سانس بچنے لگے۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہ دشمن جہاں اس کی پسند کے آسمانی گھیرے دار فراق میں گھر کے اندر انٹر ہوئی تھی۔ ماہر کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اب حنا سے مل کر رہی تھی اور پھر شبنم سے۔ حنا مسلسل اسے شکوے کیے جا رہی تھی کہ وہ اپنی بیسٹ فرینڈ پلس نین کو بھول گئی ہے، اور گل اس کی تسلی کروا رہی تھی کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ پھر ہمنا بیگم اسے گلے لگا کر خوب پیار کر رہی تھی۔ شمع تائی سے بھی اس کی ملاقات ہو رہی تھی، مگر گل کی نظریں ماہر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ نظر آیا، تیزی اس کی طرف لپکی تھی اور اس کی طرف ہی آ کر دم لیا تھا۔ عثمان بھائی، شبنم کی بات آپ کے ساتھ پکی ہوئی ہے نا؟ ماہر کے ساتھ نہیں نہیں، وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ عثمان سے پوچھ رہی تھی۔ عثمان نے چڑی نظر سے ماہر کو دیکھا تھا۔ ماہر نے اس کے سامنے ہی گل کو دھمکایا تھا، پھر ساختہ ان سب کا وہاں چھت پھاڑ کہکا گونجا تھا۔ گل ہنسی ہو کر انہیں ہنستا ہوا دیکھ رہی تھی اور شبنم بھی پیٹ پر پکڑے ہنس رہی تھی۔ ہنس ہنس کے اس کی آنکھوں میں پانی ہو گیا۔ آج وہ اتنے عرصے بعد گل کیسی تھی؟ صرف اور صرف گل کی وجہ سے۔ گل پہلے تو ان سب کو دیکھتی رہی، پھر اپنی بیوقوفی سمجھ کر ہنستی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ تازے گلاب کے پھولوں خوشبو نے اس کا پرپر استقبال کیا تھا۔ جگہ بکھرے پھول اور کینڈلز کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے، اور جو اثر خوبصورتی کی وجہ تھی اس کے کمرے سے، وہی غائب تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے، ساتھ ہی دوسری طرف سے واش روم کا دروازہ کھولا اور گل اس کے ہزاروں روپے خرچ کروا کر کیے گئے میک اپ کو پانی میں بہا کر دھلا کر چہرہ لے کاٹن کے نرم سوٹ میں ملبوس مطمئن سے باہر نکلی۔ ماہر نے تعصب سے اسے دیکھا، جو سلام ٹھوک کر اپنا روسی جوڑا الماری میں رکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ گل اس کی اپنے قریب موجودگی سے بے خبر اپنا کام کیا پلٹی کہ اس نے زوردار طریقے سے ٹکرائی تھی۔ ماہر جی، وہ اپنا ماتھا مسلتی خفگی سے کہتی، الماری کو جا چپکی تھی۔ اتنی جلدی چینج بھی کر لیا؟ کم از کم مجھے جی بھر کے دیکھ تو لینے دیتے۔ وہ خفگی لیے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ پہلے سوری بولے، پھر دوبارہ تیار ہو جاؤں گی۔ گل کی زبان پھسلی تھی۔ تیری تو؟ ماہر نے دانت پیسے۔ گل نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ وہ جانتی تھی ماہر کو اس کی اس بات سے کتنی چڑ ہوتی ہے۔ ماہر کا فون بجنے لگا۔ اب وہ ایکسکیوز کرتا ایک سائڈ پر چلا گیا۔ دوسری طرف کچھ کہا گیا تھا، سن کر ماہر کے چہرے پر چمک دوڑ گئی۔ گل ایک گڈ نیوز ہے۔ وہ چہکتا ہوا اس کی طرف آیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ اسے گول گول گھمانے لگا۔ پر وہ ہے کیا؟ گل نے چکراتے سر سے پوچھا۔ خان نے آج سزائے کے دوران برداشت نہ پا کر وہاں کھڑے ایک کانسٹیبل کی پستول چھین کر خود کو شوٹ کر لیا۔ وہ چہکتا ہوا بتا رہا تھا، خان کو پھانسی کی بجائے عمر قید بمشکل کی سزا ماہر نے دلوائی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے کر مرے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا کیا ہوتا ہے۔ گل نے ایک سانس خارج کی تھی۔ خس کم جہاں پاک گل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ماہر نے ہنستے ہوئے اس ہلکی سی چپڑ اس کے سر پہ لگائی تھی۔ ماہر جی، وہ اپنا سر تھامتی ہوئی غصے سے چیخی تھی، میں سوچ رہا ہوں شبنم ابھی تک تیار بیٹھی ہوگی، ذرا سے دیکھا ہوں۔ اس کی شرارتی رگ بار بار پھڑک رہی تھی، جو گل کو بھڑکانے کا کام کر رہی تھی۔ نہیں ماہر جی، میں بھی ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ گل بھی روحانسی ہو کر اس کے پیچھے بھاگی کہ ماہر نے ہنستے ہوئے محبت سے اس کے کندھوں سے لگایا تھا۔ وہاں گل کی کھلکھلاہٹیں اور ماہر کی شرارتیں بھری دھمکیاں جاری تھیں۔ باہر آسمان پر تارے ان کی خوشی کا جشن منا رہے تھے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھل رہی تھی۔ دور کہیں شکیلہ مراد اور سکینہ کی روحیں پرسکون ہو گئی تھیں۔ بخشو بھی اپنے رب کے آگے سجدہ ریز تھا۔ ایک نئی زندگی ان کی منتظر تھی۔ سو ڈیئر ریڈرز، ناول کا نام ہے جو بکھروں میں سمیٹ لے تو۔ اس کی رائٹر ہیں اسرا خان۔ ناول اچھا تھا، آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگ ضرور بتائیے گا۔ مجھے بھی بہت اچھا لگا، اور ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔